Last month I need. Shout out to him. Too long. When I was young, it was good. Now I'm old, like I'm 41. Hello. Hello. You getting my voice? Yes. Yeah, good Is evening, it- sir. Good evening. Is it clear? Yes, sir. Okay. So we can give initially a little bit, little introduction, that name, what people are doing right now, so I can know the background. So how I'm going to proceed. So first, what is the KJ means? Hello, sir. Myself, Kuldeep Singh Rathore. Can you speak a little louder? Little. Hello, sir. Myself, Kuldeep Singh Rathore. I am technical consultant in Consulting. You're working for consulting for which location? Jaipur. Jaipur. For which company? Apensia Consultancy Services. Okay. So this is providing your structural services in the bridges, or for all over the highway services and all? No, we are working in building sector. Actually, we have a consultancy working in highway and building. Okay, highway and buildings. Okay. Okay. So bridges are also there. Yes, this is also the part of the highway. Okay. And Ravi, can you also tell us about? Hello. Hello. You getting my voice, Ravi? Good evening, sir. Yes, sir. Yes. So can you give a short introduction so everyone knows? I can also know. I am currently working in Maldives as a residence field engineer. Resident building engineer or bridge? Yes. No, sir. Not. I am not in a bridge. Actually, A building. Okay. interested in the bridge. That's why I joined this class. Okay. Got it. So you're working as a building No, sir. Infrastructure. infrastructures like highways Highway, bridge also in our scope, sir. as a site. Side. Yes. As a site. Okay. Got it. Got it. Not in the design spec, but you want to learn, so you will have a background knowledge how bridges are designing. Currently, I want to shift in designing, sir. Got it. Got it. Yes. Because people are asking site people also that we should know about design or not. That kind of. Sometimes internal design teams also they are having problems. Correct, sir. Okay. And Currently, I'm in Lhasa with the L&T joint ventures. Yeah. okay, Lhasa with the LNT. So what kind of bridge was there? You are in the bridge or highways? Sir, Because- currently I'm in highway, but by curiosity, I'm looking some this part also. Because highway is pretty much totally different as compared to the bridges. Highway, you have all the things on the earth surface, like WC or the fillings or any kind of a Yes. cut cover and these kind of means highway design is also different and site is, and these both are different kind. Yes, sir. A bridge are totally in the air, that pretty much risk is there in the bridges, but highway no, not that much risk as compared to the bridges. I'm willing to shift in the structure parts, sir. Okay. Okay. So you want to shift. Yes, sir. I think I hope it is possible after this course. it depends. It can be possible, but every company tell you if you totally want to go in the design, they will not consider like this. You can be a design coordinator generally. When Yes. people first try to convert from site into design, if they want to go, so generally companies what they do, they first want to check if you can able to coordinate with the design team and with the site team perfectly. When you can deliver that thing, then it pretty much become very easy, because you will become familiar with the design team and the design tools and everything.
Because you are the key link between those two things. Yes. First, initially, because directly if you go into any design, they will consider as a fresher. That is the main thing, because they already consider whatever the design experience. But if you have design coordinator experience, they still consider that experience as a design. Because you are involving. If you involve with the design team, they are okay. They will consider. If you are not involved with the design team, they think you need to learn, you need to read. Because in the design, every day we need to go through the books, codes, or anything like. But at site, totally a different work is there. You just Yes. going through the drawings and whatever the design team is sending generally, or the methodologies, construction methodology is different. So it totally a different kind of thing. But in design, you have work-life balance and the other things are good. Actually, my mindset is this, sir. I'm shifting to designing part. By starting, I'm interested in design, but by coincidentally, I'm not going to. Not No, gone. Yeah. everyone happen. Even I started career as not a site. I was the design coordinator, but everyone has started because you do not get easily in the design. Yep. People generally design. They do not consider that much easy. No, first of all, the bridges projects are very limited. Not all are going to put on the bridges directly. And the other thing is that the consultant thing, I have seen it, I will tell you, sir. The fresher does not stay more than 6 months. So every company is taking the freshers, but freshers generally leave the office or any company within the 6 months, because sometimes they change the field. They will convert it to different fields, or sometimes they just change the company. So that is the one thing that generally, that is the main drawback. Companies is not taking the pressure only because of this trust issues only. Yes. Because fresher is also like that, they have responsibility, maybe loan something. If he's getting more salary in the computer branch, or if he's good in the coding, so they generally switch. Some people go with the government jobs. They try to do just crack the government, or some people go abroad for the uh, master degrees. That is fine. So, or some people go for MBA. They change also field. Mm. So No, it but totally what do you depend. call the starting career of Mhm. Joe, I'm not able to get any. That is, there's no any guidance and Guidance, yes, guidance are very important. Initially, if guidance is provided, pretty much people can able to do a lot. Initially, guidance. Hello. Hello. Good evening, sir. This is Naresh Kumar. Yes, Naresh. Actually, sir, I couldn't see the video. My video. You are not. I can hear you only, but not. I generally do not put the video, man. I'm working from home, so Okay. I do not. I usually avoid the open the cameras, Okay, because sir. Okay, no. at the background some people moving and going, so I pretty much do not open that. And Okay, sir. what's your name? Naresh. Sir, Naresh Kumar. So can you tell us a little more about Sir, where you from, where actually, you working? currently I am working with LN Infra Projects Limited as a bridge engineer. LNTIEL. नहीं नहीं LN Infra, ये LN LN Infra. Malviya, LN Okay, Infra LN is Infra. I got it. a- I got it. LN Infra. Got it. it's a consultant. I'm but currently I'm working with a project in supervision part. Got it. Supervision part. Yes, LN sir. Infra supervision. Maybe you are in the authority engineer. Yes, I'm working as a authority engineer. Got it. Yes. Sir. So you'll be Actually, checking. my qualification is MTech in structural engineering. So I want to join from the beginning in the design part. Yes, But yes. unfortunately, I got the job in the supervision. No, So everyone is same. Whatever the job they get, they have to do it because of family responsibilities and all. Yes, right, sir. So everyone has something past and think about the future.
it's not like that. So, okay, good. So, and Avinash, can you tell us? Good evening, sir. Good evening. Hello. Tell us. I'm working with REC Limited. REC Limited Mhm. is a PSU company, and as a junior design engineer, I'm working with Okay. REC Engineer. Okay, you are working Limited. design. Yeah. Okay. So I think everyone has little bit knowledge about the bridges and the drawings and all. It is not like that anyone is fresher here which does not have any knowledge. Actually, there is no knowledge in bridge You do design. not Means, have. sir. I have No, knowledge in not buildings. means you can able to read the drawings and you can able to understand the other thing. Yes. Generally, some people do not have even the knowledge of what drawing look like, what is girder, steel girder, PCSC girder, concrete girder. So that will be difficult for them initially when they do not have any drawing or any kind of knowledge. Generally, people are also there, they just uh, pass out from the recent colleges or recent years. So Actually, sir, recently I have joined, 3 months ago, I have joined REC Okay. Limited. So you are designing buildings. Yes, sir. Analysis and designing. That is fine. If you are designing, you have to do the analysis. I'm working as a freelancer. I'm also working, sir. For buildings. Yes, sir. I'm Or preparing. drafting. I'm preparing architecture work, architecture plan. That is drafting. Yes, sir. That is fine. Initially drafting. So you have any draft any reinforcement for anyone or the only plans and all? No, sir. I have also draw the reinforcement drawing. Reinforcement. Okay. Actually, recently I have analyzing and architecture. I'm preparing architecture and structure drawing. G+4 building, sir. Okay. Got it. So I will tell you myself. My name is Zaid, and I have more than 8 years of experience totally in the bridge design. And I have the experience in the metros. I have experience in the metro station, ROBs, railway over bridges, culverts, super cable stay bridges, and you can say PCSC bridges, I girders, bowstring girder, a lot of different kind of various kind of bridges with various kind of substructure and foundation. So I've been involved with the international projects, with the local projects like Indian projects, and international from the UK, US, or Middle East projects, which require different codes according to the location. So pretty much I have all I know about the Indian codes, the difference between Indian and ASTU code and the Euro codes. So if you have any doubt or anything, you can ask me directly, even with your consultancy or anything like personal work or any doubt in anything. I think Aman, I have not asked. Aman, can you also give us a little bit about yourself? Hello? Hello? Hello, Aman, yes, sir. have you given the introduction? No, sir. Can you also tell us about? Myself, sir, Shahzada Aman. Basically, I'm BTech from University of Pune, and don't have much of experience in this field. Okay, so which field you are working right now? Currently, sir, I'm preparing for some examinations. Okay. So theoretical knowledge, I'm a bit. Okay, that is what I want to know. You know, there is one person, you do not have any drawings knowledge or industrial experience. So it will Right. be from the basic for you, and other people will be able to handle advanced. That is Yes. what I want. Okay. So you are preparing for government and I think IES or GATE or this kind of. Right, sir. Right. Mhm. So okay, fine. You can start it. So let me share my screen a little bit. So today we will little bit know about the Midas software, what are capabilities it have, and what we can able to do. So everyone can see my screen. I've already explained it. One more thing, I think
this Aman has already shared with you the cracked file links that Midas cracked, or other software also. I think he has given maybe STAD or Dynamo, and I do not know other which are other software he has given to you. Have you got that link or Yes not? sir, but yes. सर एक्चुअली उनका साइट बहुत प्रॉब्लम रहता है, वो ओपन नहीं हो पा रहा है. I think he gives in the drive, or he is with the. I He is will not have- sharing Google Drive, sir. Okay, I will have to ask him. So because you will be requiring Excuse me, sir. Midas for this or STAD also, because we will use both if someone wants to learn by both. Generally, STAD is the basic structure. Why we use, first of all, you should know about it. Why we use the software. Generally, if you go beyond before 20 years, there was not any software available. Everything should be done manually, and everything should be solved by hand itself, and should be recorded in the piece of paper or any piece of sheet. This is calculation sheet, we call it. So after coming computers, and we got this advancement, I think in 2000 something, before the 2000, when Microsoft launched the Excel, then people transferred into the Excel thing. Then they solved some structure in Excel, like dead load calculation, live load calculation, or some calculation they do it manually, or some calculation with the Excel. So what software will do, it will just take your less time. It will try to reduce your time in the Excuse me, analysis sir. part. Sir, Sorry to interrupt you, sir. हाँ. Actually, मैंने सर से भी कुलदीप ने रिक्वेस्ट किया था हाँ. हिंदी में थोड़ा सा. Okay, okay, I will tell you Hindi. तो okay, just have a हम जो करते हैं जो सर ये पूछना चाह रहा था, जैसे कि कल हमारा, जैसे कि आपके शेड्यूल के अंदर जो सॉफ्टवेयर लर्निंग जो आप करा रहे हैं, हाँ. कल हमारा टेक्ला का चल रहा था. हाँ. आई थिंक मिडास, राइट? हाँ, मिडास, और मैं तो मैनुअली भी सिखाऊंगा ना डिजाइन, मतलब कैलकुलेशन, फिर उसमें हम मिडास पे तो वो करेंगे, एनालिसिस करेंगे. मतलब अपने ये मॉड्यूल में सॉफ्टवेयर वन बाय वन पढ़ाएंगे क्या, इस तरह मिक्स करके पढ़ाएंगे? Your voice is a little bit slow. Can you write down in the chat? Just सर मैं ये कह रहा था कि सॉफ्टवेयर वन बाय वन पढ़ाएंगे या मिक्स शेड्यूल में पढ़ाएंगे सर? देखो, मैं जो पढ़ाऊंगा वो सिर्फ मैं एनालिसिस और डिजाइन का पढ़ाऊंगा. अब ऐसा होता है कि जब कुछ एनालिसिस का पार्ट कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद थोड़ा वो अपना डिटेलिंग का भी चालू करते हैं. तो डिटेलिंग में टेक्ला में मॉडलिंग पे हमारा ये पूरा लेक्चर हुआ नहीं, उन्होंने प्राइमरी इंट्रोडक्शन दिया है हमें. हाँ, टेक्ला में भी होगी, लेकिन वो एकदम नहीं होती है मेरे हिसाब से. शायद जब 2-3 हफ्ते हो जाएंगे ना, जब आप थोड़े कंफर्टेबल हो जाते हो बीच में, कि आपको चीजें पता हो जाती हैं, तब उसके बाद आप इसमें आते हैं फिर मॉडलिंग. लेकिन इट टोटली डिपेंड ऑन टू अमन, दैट हाउ ही इज गोइंग टू टेक इट. अमन ही बता पाएगा, क्योंकि वो जो होता है मेरे हिसाब से नहीं होता, अमन शेड्यूल बनाता है. मैं तो सिर्फ अपना एनालिसिस और डिजाइन पढ़ाता हूँ. हाँ, How can I be able to do that? how can you able to do that, both the things? You're saying Generally- Aman will tell. I don't know anything regarding. Regarding about this course, or regarding about the modeling and analysis? You say na Aman will tell you everything. My Aman, name. Not this Aman sir, there is another Aman also. Aman, like Aman course, who organizes this all, the structured director. Okay, Aman sir. Okay, fine. Aman sir, your sir for me. You are confused with us. No, not you, Aman. Not you. The main Aman. Actually sir, actually the convenience is that. नहीं, मैं बताता हूँ होता क्या है. आपके जो लेक्चर होंगे ना, पहली बात तो वो पूरे हफ्ते होंगे नहीं, शायद हफ्ते में 3 या 2 दिन होंगे. तो उसमें ये होता है, आपको वक्त मिलेगा उतना करने के लिए, कि हम इतना भी आपके ऊपर बर्डन नहीं डालेंगे कि आप बिल्कुल प्रैक्टिस ही नहीं कर पाओ. क्योंकि फिर यही होता है, एक बार बैच लिया था जो पूरे हफ्ते करते थे, तो उसमें बच्चे कुछ प्रैक्टिस ही नहीं कर पाते थे, वो बहुत इशू हो गया था. तो प्रैक्टिस के लिए आपको हमेशा टाइम मिलेगा, 3-4 दिन से ज्यादा ही, कि आप प्रैक्टिस भी करें और क्वेश्चन भी करें, कि आप पहले खुद से भी कोशिश करें. सर वो तो आपका पॉइंट सही है, बस हाँ? मेरा ये कंसर्न था कि जैसे अभी टेक्ला के अंदर एक सेक्शन पूरा कर देते, हाँ. मिराज को लेते, तो हमारे लिए ज्यादा कन्वीनियंस होता है. क्योंकि आप 2-4 दिन, अगर 1 वीक या 2 वीक बाद अगर टेक्ला को वापस टेकअप करेंगे,
तो हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कि वापस उसको रिकवर वो करने में क्या होता है कि मिडास और फिर उसमें क्या अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत आती नहीं है। मैं बताता हूँ आप क्या कर Modular सकते हो। जो हम मिडास में सीखेंगे ऐसा होता है, मिडास में सिर्फ आपके एनालिसिस और डिजाइन होता है, मतलब डिजाइन भी नहीं ना, एनालिसिस होना है। तो आप सेम सेक्शन को उठा के आप टेक्ला में कर सकते हो ना। यही तो मेन चीज होती है कि जो मिडास दे रहा है उसी को ही सेम मॉडल करिए आप उसमें। मिडास में एक फंक्शन होता है यहाँ पे वो तो मैं समझ IF, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया आपका हाँ सॉफ्टवेयर टू एक्सपोर्ट लेके सॉफ्टवेयर। उसको उस मिड, वो क्या तो करता है अपन टेक्ला, टेक्ला में तो सिर्फ डिटेलिंग है। तो अपन डिजाइनिंग और मॉडलिंग मिडास में या स्टेट में करेंगे, हाँ फिर उसको बिल्कुल, डिटेलिंग के लिए अपन टेक्ला में ले हाँ जाएंगे या टेक्ला में फिर। जाएंगे। तो अगर आप मिडास पहले सीख लोगे, मतलब आपको एनालिसिस डिजाइन पता चल गया, तो आप बहुत आसानी से फिर उसकी मॉडलिंग और डिटेलिंग कर पाओगे। जो टेक्ला जो बनाएगा वो आपकी ड्राइंग बनाएगा, ये ड्राइंग नहीं बना के देगा, ये कुछ भी नहीं देगा, ये बस आपका एनालिसिस और वो भी दे देगा ये तो बस। मुझे पता है कि डिटेल एनालिसिस की सॉफ्टवेयर है, हाँ हाँ हाँ। स्टैंड एनफोर्समेंट जो भी नहीं है। नहीं, तो आप क्या चाह रहे हो कि आप टेक्ला बाद में सीखें या फिर टेक्ला पहले सीखना चाहते हैं? ये वो टेक्ला से स्टार्ट किया तो ये था कि आपकी टेक्ला के उन्होंने मॉडलिंग किया होगा शायद, वो लेना चाह रहे होंगे एक क्लास सर की। सर एक्चुअली एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं होने वाला है। आप जो हाँ पढ़ाओगे तो एनालिसिस पार्ट का मैं समझ रहा हूँ, मैं किया हूँ उस तरह का कोर्स, कोई इशू नहीं हुआ है उसमें। बस हाँ हाँ उसमें कि आप थोड़ा सा केयर करना पड़ेगा आपको कि सर ने क्या पढ़ाया, हमको क्या प्रैक्टिस करना है। हाँ हाँ। ये वो चीज केयर नहीं नहीं, करना थोड़ा पड़ेगा। मैं समझ गया, वो होती है, ऐसा होता है क्योंकि अब आप जो बंदे हैं कुछ वर्किंग में भी है, ठीक है। अब वर्किंग प्रोफेशनल को उसको ऑफिस का भी देखना होगा। अब मैं अलग कुछ पढ़ा दूंगा और अमन कुछ और पढ़ा देगा, तो वो सब मिक्स हो जाएगा, एक तरीके से खिचड़ी बन जाएगी। एक चीज मैं रिक्वेस्ट, और जो भी मेंबर इसमें क्लास कर, मैं एक चीज रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे हाँ हाँ कि आप क्वेश्चन रेज करो ना, आप नोट कर लो, लास्ट में क्वेश्चन पूछा करो, बीच में पढ़ाते पढ़ाते हाँ, सर वो थोड़ा फ्लो वो हो थोड़ा सा जाता है। फ्लो टूट हाँ, जाता है। और फिर जो बस मेरा, रिकॉर्डिंग होती है ना उसमें बच्चों को दिक्कत होती है, ये हुआ भी हाँ है एक दो बार कि रिकॉर्डिंग में वो ढूंढते रहते हैं कि भाई कहाँ से क्या चल रहा था। हाँ वो चीज है, मैं वही करता हूँ, देखता हूँ कि सर जब आप पढ़ा लेते हो मैं नोट कर लेता हूँ वो चीज, या मुझे डाउट में लास्ट वो चीज पूछ लेता हूँ। अभी पढ़ाना भी चालू नहीं हुआ, तो अभी तो जर्नल चल रहा है, तो कोई शक नहीं है। नहीं नहीं, मैं जब रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सबसे, हाँ हाँ और हाँ, इसे बुरा ऑब्वियसली। माने। नहीं हाँ नहीं, मैं समझ गया आपकी बात, बिल्कुल सही है। हमारे पुराने बैच में भी हुआ था कि स्टूडेंट ने कहा था कि हम क्वेश्चन लास्ट में ही पूछेंगे, जब पूरा एक सेशन कंप्लीट हो जाए, मतलब 1 घंटे पढ़ा लिया, आधे घंटे ले लिया, 1.5 घंटे पढ़ा दिया, हाँ फिर आधे घंटे हमने वो कर लिया क्वेश्चन डिस्कस। और मैं यही कहा कि आप अपने पर्सनल क्वेश्चन भी ला सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। जैसे किसी को आप कोई अपनी फॉर्म में कुछ डिजाइन कर रहा है और उसमें कुछ ओवरव्यू चाहता है, या मैं ये डिजाइन नहीं कर पा रहा, वो भी शेयर कर सकते हैं। तो वो कोई इशू नहीं है, आप पर्सनल क्वेश्चन भी ला सकते हैं और विद इन द कोर्स भी क्वेश्चन ला सकते हैं। बोथ कोर्स, बोथ आर ओपन। और कुछ क्वेश्चन हो या कुछ और पूछना हो वो भी पूछ सकते हैं, सर जैसे थोड़ा कुछ ये कुछ। इसके जो मिडाल इसका जो सॉफ्टवेयर है, हाँ ये हाँ, थोड़ा स्क्रीन ये पर मेनू, बताऊंगा, मैं बताऊंगा नहीं अभी नहीं मैं। मेनू बार पर थोड़ा स्मॉल लिखा है, इसको लार्ज हो सकता है क्या? ये आपको दिख रहा है, मैं देखता हूँ अगर मैं। एक्चुअली बहुत ध्यान से मुझे एकदम नजदीक से देखना पड़ रहा है। नहीं, ये थोड़ा ऐसे ही आता है क्योंकि ये शायद स्क्रीन में दिख रहा हो। 1 मिनट मैं कोशिश करता हूँ इसको दूसरी जगह ले आके फिर शेयर करने की, मतलब। आप दिख रहा है सही थोड़ा? यस सर। हाँ, वो स्क्रीन की वजह से था, वो बड़ी स्क्रीन में थोड़ा छोटा दिखता है। ये तो चलो अभी डिस्कस करते हैं कि हम मेन चीज, हम अगर कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उसका सॉफ्टवेयर सीखने का मतलब ये नहीं होता कि हम अपने बेसिक भूल जाएंगे। तो हमारे बेसिक बहुत क्लियर होने चाहिए। पहली बात, अगर हम कुछ भी सॉफ्टवेयर में इनपुट दे रहे हैं तो सॉफ्टवेयर से वही आउटपुट देगा। सेम एज इफ यू इनपुट गुड यू विल गेट इनपुट आउटपुट आउट, इफ यू इनपुट गार्बेज यू विल गेट गार्बेज आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट, गुड इनपुट गुड आउटपुट। सो लेकिन अब इनपुट सही है नहीं है वो भी हमें ही डिफाइन करना है, क्योंकि कोई और तो आके चेक करेगा नहीं। कब होता है कि एक सीनियर इंजीनियर या कोई चेक करता है, लेकिन वो एक्चुअली में करता कुछ नहीं है, बस ऐसे ही भेज देते हैं कि जो कमेंट आएंगे देखेंगे। मतलब अगर मैं तुम्हें डिजाइन का बताऊं नॉर्मली, कि फिर कोई प्रूफ चेकर तुम्हारे ऊपर होगा या कोई चेकिंग करेगा तो वो कमेंट्स निकालेगा या एरर जो भी ढूंढेगा वो चेक करेगा। लेकिन तुम्हारी साइड से जो चीज भी जा रही है वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए हमेशा। कि मेरी साइड से अगर कोई एक बीम बना के मैं मॉडल करके भेज रहा हूँ तो उसके ज्यादा से ज्यादा एरर निकाल दूं, अनटिल अनलेस कि तुम्हें भी ना पता हो कि वो सॉफ्टवेयर के एरर है या फिर कुछ और। मतलब सॉफ्टवेयर के अपने वो भी होते हैं माल फंक्शन, उसके भी एरर होते हैं जो हमें नहीं पता चल पाते।
लेकिन मेन चीज ये है, जो हमने लोडिंग लगाई है उसके हिसाब से हमारी बेंडिंग ठीक आनी चाहिए, हमारी शियर फोर्सेस सही आनी चाहिए, हमारी रिएक्शन सही आनी चाहिए, और बाकी मॉडल बिहेव सही करना चाहिए। मतलब जैसे भी उस पे लोड आएगा, जैसे डेड लोड आएगा तो डेड लोड के हिसाब से वो बिहेव करे, फिर लाइव लोड के हिसाब से बिहेव करे। अब टेम्परेचर आएगा, सीस्मिक आएगा, विंड फोर्सेज आएंगी, वाटर फोर्सेज आती हैं, अर्थ अर्थ प्रेशर आते हैं, सॉइल फोर्सेज आती हैं, कोलिजन फोर्सेज आती हैं, और जनरली यही ऑल ओवर दी ब्रेकिंग आती है, बेयरिंग आती है। सो दीज फोर्सेज वी शुड नो अबाउट हाउ ब्रिज विल गोइंग टू बिहेव इन डिफरेंट फोर्सेज। पहले तो उसका बिहेवियर समझना होता है। अगर बिहेवियर हमें पता चल गया कि हाँ ये बिहेवियर ठीक है, तो उससे ये होता है कि हाँ मॉडल हमारा ठीक है। हम एक क्या करते हैं, एक डेड लोड में चेक भी कर लेते हैं कि बाय मैनुअली डेड लोड का बेंडिंग मोमेंट मैच होना चाहिए जो हमारा सॉफ्टवेयर दे रहा है। नॉट ओनली मिडास, इफ यू आर डूइंग बाय एक्सेल, इफ यू आर डूइंग बाय स्टैट, इफ यू आर डूइंग बाय ईटैप, सैप, तो इनिशियली क्या करना चाहिए, एक डेड लोड में मतलब मॉडल कंप्लीट होने के बाद एक डेड लोड में रन करा लेना चाहिए, और उस रन को अपनी बाय मैनुअल कैलकुलेशन चेक कर लेना चाहिए, हाँ बेंडिंग मोमेंट मेरे और एनी सॉफ्टवेयर के सेम आ रहे हैं, ताकि हम बाकी फोर्सेस भी लगाएं। फिर जब बाकी फोर्सेस सब लगा लेंगे उसके बाद फिर हम टोटल बिहेवियर चेक करेंगे कि हाँ स्ट्रक्चर इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस करेगा, ऐसे ही मूव करेगा, और इतना डिफ्लेक्शन ही आएगा, लगभग उसके आसपास आएगा। तो उससे हमारा ये हो जाता है कि हाँ स्ट्रक्चर ठीक है, अब हम इसकी फोर्सेस ले सकते हैं। तो हम फोर्सेस लेते टाइम भी बहुत वो होना चाहिए कि कौन से कॉम्बिनेशन में लेनी है, कौन से कॉम्बिनेशन की कुछ फोर्सेज आएंगी, यूएलएस की अलग लेनी है, एसएलएस की अलग लेनी है। एसएलएस में फिर और केसेस हैं कि आपके फ्रीक्वेंट कॉम्बिनेशन और रेयर कॉम्बिनेशन, तो उसके हिसाब से उसकी अलग फोर्सेस लेनी है। वो सब अलग अलग के फिर अलग चेकिंग करनी है कि डिजाइन में हर एक फोर्स की मीन्स यूएलएस के चेक अलग हैं, एसएलएस के चेक्स अलग हैं। उसके बाद जब अब हमारा ये सब कंप्लीट हो जाए तब फिर हम ड्राइंग पे आते हैं। डायमेंशन ड्राइंग आपकी इनिशियली कैसे भी हो सकती है, मतलब आपको क्या है, रफ ड्राइंग चाहिए होती है, तो रफ ड्राइंग आप कुछ भी बना सकते हो। उसके बाद जब आपका एक इनिशियल डिजाइन सेट हो जाता है कि हाँ भाई मेरी ये डेप्थ आ गई, मेरी ये विड्थ आ गई, या मैं अगर पीसीएससी गटर कर रहा हूँ तो मेरी इतनी केबल्स आ गई, या मैं स्टील गटर कर रहा हूँ तो मेरी इतनी स्टील की बीम की डेप्थ आ गई, इतने मैं फ्लैंजेस की विड्थ रखूंगा, इतने एमएम की प्लेट यूज करूंगा, इनिशियल कर सकते हैं फॉर द डेड लोड एंड डेवलप। फिर जब आप फाइनल कर लो उसके बाद वो फिर चेंज करा दो, क्योंकि किसी को पता नहीं होता कि फाइनल में क्या आने वाला है, किसी को कुछ भी चेंज हो जाता है फोर्सेस के हिसाब से, एवरी सेक्शन कैन यू मॉडिफाइड, लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल होता है वो सेम रहता है। और दूसरा ये होता है ब्रिज में काम करने का, कि हम क्या करते हैं, अगर कोई भी ब्रिज नया डिजाइन करना है तो उससे पहले ये देखा जाता है कि इसके आसपास कोई ऐसा ब्रिज डिजाइन हुआ है, या इसके आसपास कुछ और स्ट्रक्चर डिजाइन हुए हैं कि वहां पे सॉइल कैसी थी, वहां पे वाटर करंट कैसे थे, वहां पे विंड कैसी चल रही थी, तो उससे थोड़ी बहुत हमें हिस्ट्री मिल जाती है। और फिर अगर कोई ब्रिज हुआ भी है, फिर हम क्या देखते हैं कि सेम स्पैन का ब्रिज कहीं और हुआ है डिजाइन, तो हम उससे क्या लेते हैं, आइडिया ले लेते हैं कि कितनी डेप्थ की बीम यूज करी, या कितनी विड्थ की बीम यूज कर रहे हैं, या हमारे पास स्पैन आ गया तो उसकी स्पेसिंग क्या रखें फिर बीम की, वो तो ये सब चीजें एक आइडिया के तौर पे हम दूसरे से रेफर करा सकते हैं। और रेफर से ये होता है कि एक चीज पहले कंस्ट्रक्ट हो चुकी है तो आपका फायदा ये होता है, आप लिख सकते हो ये पहले कंस्ट्रक्ट हो चुका है तो मैं ये रेफर कर सकता हूँ। तो आप दूसरे का काम भी ब्रिज में क्या होता है, रेफर के तौर पे यूज कर सकते हो, लेकिन फिर आपको अपना डिजाइन भी देना पड़ेगा कि हाँ भाई मैंने ये रेफर करा, लेकिन मैंने अपने डिजाइन से भी प्रूफ करा दिया ये ओके है। तो ये होता है बेसिक फंडा, क्योंकि अब ब्रिज में इसलिए ही बोलते हैं कि एक्सपीरियंस बंदा लाओ, क्योंकि एक्सपीरियंस क्या, उसको ये पता होता है कि मेरा 30 मीटर का स्पैन है तो मैं अपनी कौन सी बीम यूज कर सकता हूँ और कौन सी कहाँ से उठा के चीजें ला सकता हूँ इनिशियली। क्योंकि उनके अगर वो शुरू से करने बैठेगा तो इतना टाइम लगेगा कि एक ब्रिज करने में ही एक महीना 2 महीने लग जाएंगे, और इतना टाइम ना तुम्हारा क्लाइंट कोई देता है, ना जिस कंपनी में काम कर रहे हो वो देंगे, और ना कोई और बोलेगा कि भाई इतना ज्यादा टाइम ले रहा है तो भाई किसी और को देख लो वो जल्दी करके दे देगा। तो हर किसी को तो जल्दी है कि डिजाइन भी जल्दी हो जाए, कंस्ट्रक्शन भी जल्दी हो जाए, ब्रिज पे ट्रैफिक चालू हो जाए, बस और कोई मतलब नहीं, बस जल्दी जल्दी हो जाए। और वरना दूसरा ये होता है कि आपके पास एक डीबीआर अवेलेबल होता है इनिशियली, तो डीबीआर से आप डायमेंशन उठा लेते हो और उसके हिसाब से फिर मॉडलिंग कर लेते हो। लेकिन अगर आप डीबीआर के लिए काम कर रहे हो तो फिर आप दूसरे रेफर करते हो दूसरे स्ट्रक्चर को, या दूसरा डीबीआर रेफर करके वहां के स्ट्रक्चर लगा सकते हो, और उसको एक प्रिलिमिनरी डिजाइन बोलते हैं
प्रिलिमिनरी डिजाइन में सारी फोर्सेस अप्लाई नहीं करते, डेड लोड लाइव लोड अप्लाई करते हैं, और थोड़ी बहुत अगर अर्थ प्रेशर आ रहा है सीस्मिक आप छोड़ सकते हो प्रिलिमिनरी डिजाइन में, विंड भी छोड़ सकते हो, टेम्परेचर जरूरी होता है, थोड़ा टेम्परेचर लगा सकते हो। बाकी प्रिलिमिनरी डिजाइन में बस हमें ये दिखाना होता है कि हमारे सेक्शन इस स्पैन के लिए इतनी डेड और लाइव लोड के लिए ओके है। अब जब डिटेल डिजाइन होगा तो आप इसका रीइंफोर्समेंट जो डालना डालना, जो पीटी आ रही है वो करना, या स्टील आ रही है, जो स्टील गडर है वो आ रहे हैं वो करना, वो पूरा डिटेल डिजाइन में मैटर करता है। तो हमेशा जो कंसल्टेंट काम करते हैं वो दो तरीके के कंसल्टेंट हैं हमारे इंडिया में, या बाहर भी जो भी है, मतलब इंडिया के बाहर भी जो भी कंसल्टेंट काम कर रहे हैं, वो पहले तो काम करते हैं या तो वो प्रिलिमिनरी डिजाइन पे काम कर रहे होंगे। अगर आप प्रिलिमिनरी पे कर रहे हो तो आपकी थोड़ा पहली बात तो वो हो जाता है, टाइम कम लगता है, और लेकिन ड्राइंगें ज्यादा होती है, डीबीआर में बहुत सारे ब्रिज होते हैं। So preliminary design, if you are doing, does not have to do lot of work. First of all, consultant only work on preliminary design. These are known as DPR work. In India, I am talking about only. DPR known as detailed project report. So in this, you will have, इसमें क्या होता है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में पूरी हाईवे की प्रोफाइल होगी, आपकी रोड की प्रोफाइल होगी, आपकी ब्रिज की प्रोफाइल होंगी, आपकी कितना मटेरियल लग रहा है वो होगा, और आपका ब्रिज की इन्वेंट्री आती है। ब्रिज की इन्वेंट्री में आता है कि इतने इतने अबटमेंट होंगे, हमें इतनी फिलिंग करनी पड़ेगी, और फिर कितने कितने स्पैन पे हम अपना ब्रिज लगवाएंगे। लेकिन जैसे आपका हिमालयन में ब्रिज है तो हम सिंगल स्पैन में क्रॉस करना चाहेंगे, और आपका अगर नॉर्मल हाईवे ब्रिज है तो वहां पे 2 स्पैन में क्रॉस करोगे, या फिर ज्यादातर इसमें मेन वर्क हाईवे को होता है, ज्यादा काम जो हाईवे का होता है, थोड़ा कम काम आपका ब्रिज का होता है। ब्रिज का वर्क भी इनिशियली थोड़ा हाईवे और हाईवे की टीम के साथ इन्वॉल्व रहता है, क्योंकि उनका वो अलाइनमेंट डिसाइड करेंगे, वही आपको रोड लेवल देंगे, हाईवे इंजीनियरिंग सब कुछ देगा आपको। ज्यादातर डीपीआर में आप सिर्फ स्ट्रक्चर थोड़े बहुत देख के इनिशियली बता देते हैं कि हाँ भाई अब 20 मीटर का स्पैन है तो 1.5 मीटर की डेप्थ की बीम लगा दो, अगर 30 मीटर का स्पैन है तो 2.5 मीटर की बीम लगा दो, या फिर कितने स्पेसिंग की है, फिर क्या है वो पीसीएससी दोगे या स्टील दोगे। अब आरओबीज हैं, जैसे उसे बोलते हैं रेलवे ओवर ब्रिज, तो रेलवे ओवर ब्रिज में ज्यादातर हम सारे स्टील गडर ही यूज करते हैं। जहां पे भी रेल से जो रिलेटेड कुछ भी आता है स्टील आ जाता है, स्टील। और जहां भी हाईवे से आता है तो फिर आरसीसी और पीसीएससी रहता है। लेकिन हाईवे में भी हम स्टील गडर यूज कर सकते हैं, लेकिन रेलवे में बहुत रेयर है, रेलवे अप्रूव नहीं करती, इंडियन रेलवे जनरली अप्रूव नहीं करती है आपके आरसीसी और पीसीएससी ब्रिजेस। वो हमेशा चाहते हैं कि स्टील में ही काम किया जाए, स्टील की प्रॉपर्टीज अच्छी होती हैं, ज्यादा होती हैं, और लेकिन रेट बहुत ज्यादा हाई जाता है, कॉस्टिंग बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। जैसा आपने देखोगे स्टील ट्रस होते हैं, बोस्टिंग गर्डर्स होते हैं, वो अब काफी हाईवे में कॉमन हो गए, लेकिन वो सारे यूज इसमें ही होते थे, रेलवे ब्रिजेस में। और फिर आता है, अगर आपका प्रिलिमिनरी डिजाइन हो गया, डीपीआर सबमिट हो गया, अब ये क्या करती है गवर्नमेंट, डीपीआर अप्रूव करती है कि ये डीपीआर अप्रूव हो गया है। फिर उस डीपीआर के हिसाब से वो करती है, बोली लगाती है कि कौन इस प्रोजेक्ट को लेना चाहेगा। इफ यू सीन दैट कि अब 4-5 कंपनियां आएंगी, जैसे एफ कॉन आ जाएगी, जे कुमार आ जाएगी, और हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, एनसीसी, अदर जो भी कंपनी कोई भी हो, कि हम ये काम लेना चाहते हैं। अब वो दूसरी कंपनी क्या बोलेगी, ये यहाँ पे बोल देंगे कि आप ही डिजाइन कराओगे। मतलब किसी भी एक कंपनी का एग्जांपल ले लो, जैसे हमारी कंपनी एफकॉन ने बोल दिया कि मैं, एफकॉन ने कुछ कोट किया कुछ, और जे कुमार ने कर दिया, या किसी एलएनटी ने कर दिया, तो कोई भी कंपनी, जैसे 3 कंपनियों की पास हुई और उन्होंने अपनी कोटेशन कुछ दे दी, तो इसमें से एक विनर आया, जैसे L1 आया, L2, L3। अब इस L1 को ये प्रोजेक्ट दे देंगे, क्योंकि इसकी सबसे कम कॉस्ट है, जनरली जिसकी भी कम कॉस्ट आती है, जब तक तुम्हारा अंदर कोई बंदा ना हो, जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं या टाटा के हो गए, अडानी के हो गए, वो ले लेते हैं हायर कॉस्ट पे भी, लेकिन ज्यादातर जो हाईवेज और ब्रिजेस के प्रोजेक्ट होते हैं सस्ते में जाते हैं। तो ये L1 वाला क्या होगा, इसको पूरी गवर्नमेंट, अपनी इंडियन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट दे देगी। ऐसे ही बाहर होता है, वो भी ऐसे ही इस पे डीपीआर पे बिड करके
प्रोजेक्ट ले लेंगे। अब इस एफकॉन के पास क्या होगा, ये डीपीआर जाएगा और एफकॉन की एक, जैसे सारी कंपनी की इंटरनल टीम भी होती है, डिजाइन टीम, इंटरनल डिजाइन टीम होती है, और वो बाहर से कंसल्टेंट भी रखते हैं। अब वो क्या करेंगे, अपने इंटरनल डिजाइन टीम से पूछेंगे क्या तुम ये कर पाओगे, अपने ब्रिजेस हाईवे इंटरनली पॉसिबल है क्या, तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुम ये सब कर लो, अगर हो सके तो अगर वो बोलेंगे हाँ, तो वो F1 की इंटरनल डिजाइन टीम ही लेके करने बैठ जाएगी। अगर वो मना कर देगी टीम की हमारे पास और प्रोजेक्ट भी है, नहीं कर पाएंगे, तो F1 क्या करेगा, थर्ड कंसल्टेंट को देगा जो सिर्फ स्ट्रक्चरल डिजाइन ही करते हैं, जैसे कोई भी और टंडन है दिल्ली में, या फिर BSEC है, ये सब इंडियन बता रहा हूँ। अब फिर आपके जो इंटरनेशनल है वो अलग है, WSP, जेकब्स एंड कोबी ओबी, अदर देयर लॉट ऑफ कंसल्टेंट, इवन आई डू नॉट नो अबाउट रोडिक और ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर, और राइट नाउ फोर्स इज गोइंग गुड, so lot of even you will know about, generally they are not very famous, Dinkar Subha, these are more of famous which I have discussed with you. तो अब ये जो प्रोजेक्ट लेंगे, ये कॉस्टिंग करते हैं कि प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट क्या है, उसके हिसाब से एक प्रोजेक्ट उठा लिया। फिर उसके बाद अपने, इनके पास इंजीनियर सिर्फ यही होते हैं अपने, हाँ, जो इनको कहते हैं स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स के लिए, हाईवे इंजीनियर्स, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, structure, geotech people or hydrologist. So they have already whole team available, everyone office. Sometimes if कभी कभार उनके पास टीम नहीं होती है तो वो आउटसोर्स भी कर देते हैं प्रोजेक्ट की, भाई हाईवे और ब्रिज हम खुद का कर लेंगे, फिर वो एक और कंसल्टेंट को जियोटेक किसी और से करवा लेते हैं, हाइड्रोलॉजी किसी और से करवा लेते हैं। तो ऐसे ही करके सारे के सारे इन्वॉल्व रहते हैं कहीं ना कहीं, और सबको काम मिलता रहता है। तो मेन जो हम काम करते हैं वो करते हैं इन कंसल्टेंट के अबाउट। जनरली यहाँ जो काम होता है, यहाँ काम होता है, इतना ज्यादा डिटेल डिजाइन नहीं होता क्योंकि इनके पास इतना टाइम नहीं होता। ये ज्यादा कोटेशन पे वर्क करते हैं, अपने एस्टिमेशन पे करते हैं, प्रिलिमिनरी डिजाइन पे करते हैं कि हम अगर ये खुद से डिजाइन कर रहे हैं तो हमारी कॉस्टिंग क्या जाएगी। तो ये सब कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं इनकी एक टीम होती है, लेकिन ये ज्यादातर डिजाइन करवाते किसी बाहर से ही है, क्योंकि वो बाहर वाले जो कर रहे हैं उनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, और वो उन्हीं के लिए हम सब काम करते हैं। जो हम अभी जो आप सब काम कर रहे हो वो कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए कर रहे हो, जो साइट पे काम कर रहे हो, या अथॉरिटी इंजीनियर्स है। जब आप उनकी डिजाइन, उनको जो रिकमेंडेशन देते हैं वो देते हैं प्योर कंसल्टेंट, जो सिर्फ स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट होते हैं या हाईवे कंसल्टेंट होते हैं। बहुत दोनों ही होते हैं ज्यादातर, क्योंकि एक हाईवे इंजीनियर भी रखते हैं वो एक, ये नॉर्मल ब्रिज की बात करो। अगर आपके पास मेट्रो है तो मेट्रो में तो ज्यादातर स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट ही होते हैं, और एक होता है अलाइनमेंट इंजीनियर जो बस ट्रैक का अलाइनमेंट देख लेता है, वो बता देता है। वैसे ही उसकी ज्यादा जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो मेट्रो का अलाइनमेंट एक ही बार में फिक्स हो जाता है, फिर बीच में जरूरत पड़ती है तो एक आधा बार ही चेंज होता है। लेकिन हाईवेज बहुत बड़े बड़े होते हैं, आपके किलोमीटर्स में होते हैं, 100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर। मेट्रो ज्यादा से ज्यादा 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, इससे ज्यादा कहीं नहीं होती। फर्स्ट इनिशियल स्टेज में इतनी इतनी, क्योंकि मेट्रो हमेशा पार्ट्स में बनती है कि पहले 30 किलोमीटर बननी है, फिर अगली जो बनेगी वो 20 किलोमीटर और एक्सटेंड हो गई, फिर 30 किलोमीटर आ गई। तो उसमें अलाइनमेंट इंजीनियर्स होते हैं जो बहुत रेयर है, सबसे कम है इंडस्ट्री में ज्यादातर। और रेलवे के भी ऐसी है, रेलवे में भी अलाइनमेंट इंजीनियर होता है, लेकिन उसका भी अलग होता है। और फिर वो ब्रिजेस वो भी हमारे पास ही आते हैं कि कैसे डिजाइन करोगे, उनकी फोर्सेस कैसे निकालोगे। तो मेट्रो ब्रिजेस की फोर्सेस अलग होती हैं, हल्की बहुत, और नॉर्मल जो ब्रिजेस होते हैं उनकी अलग होती है, और हाईवे जो तो हमारे रेलवे ब्रिज होते हैं वो अलग होते हैं। सब में सबसे इंपॉर्टेंट तो लाइव लोड चेंज हो जाता है सारे ब्रिजेस में, सबका लाइव लोड डिफरेंट है। दूसरा, कुछ फोर्सेस डिफरेंट हो जाती है और कुछ नई फोर्सेस इंट्रोड्यूस हो जाती हैं, इसमें इम्पैक्ट फैक्टर चेंज हो जाते हैं। बाकी हमारे डेड लोड सेम रहते हैं, और हमारे SIDL सेम रहते हैं। SIDL नोन है सुपर इम्पोज डेड लोड। if someone will ask you what is known as SIDL, it is superimposed dead load। ये होता है हमारा क्रैश बैरियर वेयरिंग कोर्स, WC जिसे हम कहते हैं। तो ये कम इसमें आता है SIDL में, और हमारी स्लैब भी कभी कभार SIDL में आ जाती है और कभी नहीं आती है, और डिपेंड करता है किस टाइप का ब्रिज है। और फिर ये हो जाता है, ये हो जाता है। हाँ, इसके बाद बस ये है, कंसल्टेंट क्या करते हैं, ये अपनी ड्राइंग सबमिट करते हैं कॉन्ट्रैक्टर को, और कॉन्ट्रैक्टर फिर सबमिट करता है किसी प्रूफ चेकर को। इफ जनरली IITN होते हैं या कोई दूसरी कंसल्टेंसी हो सकती है,
कि जैसे टंडन और बीसेक आपस में ही प्रूफ चेकिंग और डिटेल डिजाइन कर रहे हैं, मतलब ये डिटेल डिजाइन कर रही है और ये प्रूफ चेक कर रही है, तो प्रूफ चेक करने के बाद फाइनल ड्राइंग जो होती है वो साइट पे दी जाती है, वो होती है GFC, गुड फॉर कंस्ट्रक्शन। उसके हिसाब से आप काम करते हैं अपनी साइट पे कि भाई मेरे पास इतना रीइंफोर्समेंट की और इतने साइज की बीम मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। लेकिन उसके पीछे बहुत काम होता है, जब आपको ड्राइंग मिलती है इतनी आसानी से नहीं मिलती, उसके पीछे काफी थ्योरी और काफी प्रैक्टिकल अपनी कॉलेज तो नहीं, बुकिश नॉलेज और कोड नॉलेज बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती है। ड्राइंग देखने में बहुत आसान लगती है कि हाँ भाई बन गई और काम चालू कर दो, लेकिन उसके पीछे जो जिसने बनाई है या जो इन्वॉल्व है वो काफी लॉन्ग प्रोसेस होता है और टाइम कंज्यूमिंग भी होती है। कभी कभार हमारा चीजें फंस भी जाती है। क्या होता है आपको कॉन्ट्रैक्टर बोल देगा कि मेरे पास शटरिंग अवेलेबल है कुछ और मुझे उसी शटरिंग में ही आपको ब्रिज मुझे डिजाइन करके देना है, तो मैं दूसरी यूज नहीं करूंगा, तो वो चीजें होती है। या ऐसा होता है कि प्रिलिमिनरी DPR में जो साइज बोल दिया अब आप उसी साइज में ही काम करोगे, साइज चेंज नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने शायद शटरिंग ऑर्डर कर दी हो या हमारे रोड क्लियरेंस का इशू हो या स्पैन चेंज नहीं कर सकते। लेकिन डिटेल डिजाइन में अगर ये सब इशू नहीं होता तो हम चीजें चेंज कर सकते हैं, हम साइज को मॉडिफाइड कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, सब कुछ हमारे हाथ में होता है डिटेल डिजाइन में। प्रिलिमिनरी में कुछ आप थोड़ा बहुत करके दे सकते हो, कोई इशू नहीं है, इनिशियल साइजिंग इंपॉर्टेंट होती है बस। तो ये होता है हमारा कैसे हम ब्रिज का ज्यादातर काम या हाईवे का जो चलता है। बिल्डिंग का थोड़ा सिंपल होता है, एक आर्किटेक्ट मिलेगा वो डायरेक्ट अपना आर्किटेक्ट बना लेगा, आपको प्लान और वर्टिकल प्रोफाइल दे देगा और बोलेगा कॉलम लगा के मुझे रीइंफोर्समेंट बता दो, बाकी मैं अप्रूवल लूँ ना लूँ वो मेरी मर्जी, बस दे दो मुझे ड्राइंग और तो वो थोड़ा सिंपल होता है बिल्डिंग का। लेकिन ब्रिजेस का काफी लोगों से होके गुजरता है, गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, कॉन्ट्रैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, फिर प्राइवेट कंसल्टेंट इन्वॉल्व होते हैं, फिर अप्रूविंग अथॉरिटी इन्वॉल्व होती है। इसलिए ब्रिज का काम लंबा भी होता है और टाइम कंज्यूमिंग, और ब्रिज इंपॉर्टेंट भी है। अगर आपका एक ब्रिज गिरता है तो कितना ज्यादा लॉस होता है। पहली बात तो जो इसमें उसमें कॉस्ट लगी है, जैसे अभी बिहार में एक ब्रिज गिरा वो केबल स्टे ब्रिज, तो 1700 करोड़ का प्रोजेक्ट था वो, तो they lost around 4 years, so bridge cost will be very huge, they have very huge loss for that। उसमें अच्छी बात ये थी कि किसी इंसान का लॉस नहीं हुआ, कोई किसी की जान नहीं गई। शायद सुनने में आया था कि 2 लेबर शायद फंसी थी, लेकिन ये नहीं पता मुझे भी कि उनकी डेथ तो नहीं हुई, होपफुली कि नहीं हुई होगी वरना तो आ जाता न्यूज में। तो वो नहीं सर, काफी डेथ हो गई थी। हो गई थी शायद, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, दिखाया नहीं न्यूज में जानबूझ के कि न्यूज में नहीं वो दिखा। पैसे दे दिया होगा ना वो उसने, हाँ। क्या नाम है कंसल्टेंट, ये अपने कॉन्ट्रैक्टर ने SP सिंगला बना रहा था। हाँ तो SP सिंगला ज्यादातर स्पेशल ब्रिजेस ही करता है, केबल स्टैंड और इसका डिजाइनर भी टंडन है और ये इसकी इंटरनल डिजाइन टीम भी है, तो इसने इसी के खरीद रखे हैं, कोई इशू नहीं है SP सिंगला। और तो अब उसने पैसे खिला के अपने वो बचा लिए, क्योंकि अब इसमें से 1700 करोड़ में से 200 करोड़ तो उसने सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियलों को दिए हुए थे बिहार PWD में, तो 1500 करोड़ पे तो वो कर रहा था प्रोजेक्ट, पहले ही वो कम में कर रहा था। अब उसमें से उसका इतना लॉस होगा तो मेरे हिसाब से पेनल्टी भी लगी होगी, बहुत चीजें हुई भी है इसमें। तो इसलिए ब्रिजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बात वो टोटली इन दी एयर होते हैं कि आपका एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे होते हैं, तो ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप रोड डिजाइन कर रहे हो तो रोड तो जमीन पे ही रहेगा, वो कहीं नहीं हिलेगा। उसमें तो अगर कुछ आएंगे तो जैसे अभी बारिश के चक्कर में नीचे से सॉइल ही जाएगी, उसमें भी आपका कोई लॉस नहीं होगा कि भाई बारिश आ गई सॉइल रोड हो गई तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर ब्रिज गिरेगा तो सबसे पहले वो डिजाइन को पकड़ेंगे कि डिजाइनर ने क्या सबमिट करा था और क्या अप्रूव हुआ था और क्या उसने सारे क्लॉजेस फॉलो किए थे, सब तरीके से चेकिंग की थी। तो सबसे पहले अगर डिजाइनर ओके है, अब यहाँ क्या था कि इनिशियली डिजाइनर तो ओके आ गया था, लेकिन इस ब्रिज में इशू ये था, ये ब्रिज पिछले साल इस पे वो हुई थी, जो हवा के चक्कर में थोड़ा डिफ्लेक्शन आ गया था, तो SP सिंगला ने पैसे खिला विला के छोड़ दिया कि हाँ हाँ हमारी फाउंडेशन ठीक है। अब ये हुआ था बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकल डिजाइन। इकोनॉमिकल डिजाइन में क्या होता है कि आपका मार्जिन जो होता है वो बस 2-3% रह जाता है या 5%। अब उसमें जब इसमें इस साल जब बारिश हुई तूफान आया तो वो गिर गया, क्योंकि मार्जिन उसके पास था ही नहीं, फोर्सेस बढ़ गई, तो वो वर्किंग के टाइम भी उसकी वैसे तो फाउंडेशन फेल हुई है,
फाउंडेशन या पाइल गैप, क्योंकि सुपर स्ट्रक्चर वैसी का वैसी था, बाकी फाउंडेशन फेल हो गई और वो इंटरनली डिजाइन था फाउंडेशन भी। तो अब इसलिए इंटरनल कमेटी देख रही है कि पहली बात तो साइट साइट का इन्वॉल्वमेंट की उनको पहले ही वो मिल गई होंगी वार्निंग्स, तो उन्होंने बताया क्यों नहीं कि ये ब्रिज गिर सकता है। पहला तो ये होता है। फिर दूसरा ये होता है कि जब ब्रिज इतना डिजाइन कंजर्वेटिव था तो थोड़ा हमें मार्जिन एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर देना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत वो होते हैं स्पेशल ब्रिजेस हैं, केबल स्टे जिनके भी आपके स्पैन 60 मीटर से ऊपर चले जाएंगे वो स्पेशल ब्रिजेस में आने लगते हैं, क्योंकि उसका सुपर स्ट्रक्चर गिरना और सब स्ट्रक्चर फाउंडेशन फेल होना मुश्किल है। आप टेम्पररी सपोर्ट पे भी कुछ टिका नहीं पाओगे। अगर आपका 60 मीटर से ऊपर में अगर पियर में क्रैक चालू हो गए या फिर आपके सुपर स्ट्रक्चर में क्रैक दिखने लगे तो आप रिहेबिलिटेशन भी इतना आसानी से कर नहीं पाओगे, टाइम लगेगा, उसमें टाइम टेकिंग टास्क है वो भी। तो ये सब चीजें होती है इन्वॉल्व, इसलिए ब्रिजेस को हल्के में नहीं लिया जाता, इंपॉर्टेंट चीज है, हमेशा कॉन्शियसली किया जाता है एक चीज देख के। तो ये बस मैं बताना चाह रहा था कि आप अगर कोई भी ब्रिज में जब भी जाए तो वो थोड़ा माइंड ओपन रखे और चीजें मतलब अगर कोई कुछ गलत कर भी रहा है तो मना कर दे, भाई नहीं मैं अप्रूवल नहीं दूंगा या मैं सबमिशन नहीं दूंगा, जो सही है वैसे फॉलो करे। क्योंकि अब जब ऐसा होता है ना, जब आप किसी कंपनी के लिए काम करने लगते हो तो वो अपने रूल्स के हिसाब से करती है। कभी कभार क्या बोलेगी, चलो ठीक है जो हो गया जाने दो, या फिर कभी अप्रूवल के टाइम पे बोलेंगे अरे जो आ रहा है साइन करके दो, हमें आगे भेजना है, साइट पे काम रुक रहा है। तो बहुत चीजें आती है। तो इनिशियली आपके प्रिंसिपल स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जान का खतरा ज्यादा होता है, जान माल का खतरा जैसे कहते हैं। ये तो ठीक है चलो पैसा है कोई नहीं, लेकिन अगर कोई आदमी मर जाता है वो ज्यादा कीमती चीज है, वो लॉस नहीं होना चाहिए। पैसा तो आता जाता रहेगा लेकिन लाइफ एक बार चली गई तो उसकी पूरी फैमिली है और बहुत चीजें उसके ऊपर रुकी भी होती है जो सही नहीं है। Okay, so now I will take you in the Midas. How Midas look like? If you just open, आप Midas को देखेंगे तो मेरे पास तो थोड़ा लेटेस्ट है जैसे 722 है। आप जो क्रैक इंस्टॉल करोगे वो है 19 वर्जन है। थोड़ा फर्क ये है उसमें, इसमें कोड अब ज्यादा अपडेट हो गया, उसमें कोड ज्यादा अपडेट नहीं हुआ है, इतना ही फर्क है। बाकी आप जो दिखने में है और सब कुछ आपके एनालिसिस रिजल्ट सब कुछ सेम ही आएंगे और हर चीज सेम है, ओनली कोड अपडेट होते रहते हैं। तो हर सॉफ्टवेयर का यही होता है, जैसे जैसे वो रिसेंट अपडेट आती रहती है तो उसमें हर साल कोड अपडेट होते रहते हैं, क्योंकि नए नए अमेंडमेंट या नया कुछ ना कुछ आता ही रहता है हर साल कोड में। इंडिया में नहीं आता आसानी से, लेकिन यूएस में और यूरोप में आता रहता है। यूएस में तो सबसे ज्यादा हर साल आज तो अपने कोड में चेंज करता रहता है, कुछ ना कुछ अमेंडमेंट लाता रहता है, तो वो करते रहते हैं अपने इसमें इन्वॉल्व। तो अगर आप सबसे पहले विंडो देखोगे, पहले तो ये क्लिक करके आपको पता चल जाएगा कि ये न्यू प्रोजेक्ट देगा या ओपन प्रोजेक्ट पुराना है या बंद करना है, प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन इंपोर्ट। यहाँ पे क्या होता है, इंपोर्ट आप मिडास की एमसीटी फाइल ला सकते हैं, पुरानी ऑटोडेस्क डीएफ ला सकते हैं। लाइक मेरे पास कोई पहले से ही अलाइनमेंट मौजूद है, मुझे चाहिए तो मैं ये ले देता हूँ। सैप भी ले सकते हैं, सैप की फाइल, स्टैट फाइल, लूसास की फाइल। तो ये है कनेक्टिविटी बिटवीन टू सॉफ्टवेयर, लाइक स्टैट से कनेक्ट, सैप से कनेक्ट और ऑटोकैड से कनेक्ट कर सकते हैं ताकि हमारा इजी हो। ये एक्सपोर्ट है ऐसे ही कि आप इस मेरी हाँ? डायरी एक्चुअली छूट गई है। हेलो, तो आप दोगे यार, मैं नोट कर रहा था कुछ ना। और आपका जो है फिर ऐसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। हैं। ये तो इनिशियल हो गया, ज्यादातर हम न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके प्रोजेक्ट चालू कर सकते हैं। तो जब न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे ऐसे ब्लैंक स्क्रीन आएगी, कुछ दिखाई नहीं देगा और ये सारे ऑप्शन होंगे। और इसमें राइट लेफ्ट साइड में आपके ये टैब्स आएंगे, ट्री मेन्यू बोलते हैं हम इसमें, टेबल्स, वर्क, ग्रुप, रिपोर्ट। तो आप इसमें मूव करा के अपनी चीजें देख सकते हैं। जनरली हमारा टेबल्स वर्क्स में काम रहता है, ग्रुप में हम ग्रुप बनाते हैं, इन दो में आपका ज्यादा ही यूज रहेगा। टेबल्स और रिपोर्ट में कुछ यूज ज्यादा नहीं रहेगा। फिर उसमें ऊपर ये सारे बटन्स होते हैं, ये आप देख सकते हो। जैसे मैंने क्लिक करा ये ग्रुप का, ये टॉगल वर्क फ्री एंड प्रीवियस डायलॉग का, या फिर ये सिंगल सेलेक्ट। तो ये भी इसका जब यूज होगा तो हम करते चले जाएंगे। उससे पहले व्यू के ऑप्शन आते हैं। तो यहाँ पे व्यू के ऑप्शन है अलग अलग, कि आप यही ऑप्शन है, जैसे इसमें मैं क्लिक करूंगा तो ये यहाँ से भी वर्केबल है। व्यू पॉइंट को ऐसा चाहिए टॉप व्यू तो मैं यहाँ से भी कंट्रोल कर सकता हूँ। और जूम चाहिए, प्रीवियस व्यू चाहिए, इनिशियल व्यू चाहिए, तो ये सब व्यू का ऑप्शन है। डिस्प्ले में कुछ और चेंज करना हो, डिस्प्ले ऑप्शन में यूसीएस आप क्या रखना चाहते हो, ये क्लोज टाइल हॉरिजॉन्टली टाइल वर्टिकली,
तो ये सिर्फ व्यू के ऑप्शन है, यहाँ ज्यादातर हम कुछ चेंज करते नहीं है, बाकी सारे ऑप्शन यहीं से यूज हो जाते हैं सारे व्यू के। फिर अगला टैब जाते हैं तो स्ट्रक्चर का है। अब यहाँ क्या है, यहाँ पहले से ही ना इसके मॉड्यूल बने हुए हैं कि अगर हम केबल स्टे ब्रिज यूज करना चाहते हैं, सस्पेंशन करना चाहते हैं, या कोई और बेस स्ट्रक्चर में लगाते हैं, बैलेंस कैंटिलीवर हो गया, आप ट्रांसवर्स मॉडल बनाना चाहते हो अपने किसी ब्रिज से, ग्रिलेज मॉडल या आरसीसी ब्रिज, स्टील कंपोजिट, प्री स्ट्रेस कंपोजिट, आरसीसी स्लैब, तो ये सारे हैं। जब हम मिडास में कंफर्टेबल हो जाते हैं तब हम इन्हें यूज करते हैं। इनिशियली काफी कंफ्यूजन होता है, यूज भी नहीं करना चाहिए जब तक पूरी नॉलेज ना हो उनको। और बाकी यहाँ पे थोड़े बहुत ऑप्शन है, इसको भी बाद में यूज होंगे डुप्लीकेट चेक करने के लिए या फ्री है। मेन जो हमारा चालू होता है वो होता है नोड और एलिमेंट से। तो हमारा, हम जो मॉडलिंग करते हैं, हम कोई भी मॉडलिंग एक दो नोड प्लस वन एलिमेंट से होती है। अगर आपको एक बीम भी बनानी है, जैसे ये मैं एक बीम बनाना चाहता हूँ, यहाँ से यहाँ गई, अब ये चाहे मेरी ब्रिज की बीम हो या मेरे बिल्डिंग की बीम हो या मेरी नॉर्मल इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स की बीम हो, किसी की भी बीम हो, तो इसमें ये क्या होता है, दिस इज नोड 1 एंड दिस इज नोड 2, सो 1 and 2 एंड दिस इज एलिमेंट 1। सो हमेशा आपके दो नोड मिला के और एक एलिमेंट बना के एक बीम बनती है। इसमें क्या होता है, ये इनिशियल पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट कह सकते हैं कि हम इधर से चल रहे, और ये मेरा एंड पॉइंट होता है। ये सारे सॉफ्टवेयर में होता है, सब में कॉमन है कि इनिशियल पॉइंट, एंड पॉइंट क्या है, डायरेक्शन क्या है, और कितने बीम्स हैं, कितने नोड हैं, वो सब बताएगा और सब देता है, क्योंकि उसी के हिसाब से हमारी फोर्सेज आती है सब कुछ। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हर सॉफ्टवेयर में कॉमन है, मिडास यूज करें, स्ट्रैड यूज करें, ईटैब, सब में बीम कॉलम होने चाहिए, और इसी के थ्रू हम पूरा ब्रिज मॉडल कर देते हैं एज ए बीम थ्योरी पे। लेकिन अगर हमें कुछ और स्पेशल चीजें मॉडल करनी होती है तो हम प्लेट थ्योरी पे आते हैं, वो डिफरेंट है, अभी नहीं कर रहे। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे अप टू दिस पॉइंट हमारे नोड्स की कमांड्स हैं, और इसके बाद हमारी अप टू दिस पॉइंट एलिमेंट्स की कमांड्स हैं। उसके बाद ये वाली कमांड हमारी प्लेट्स की है, ये कॉमन है। अब जैसे मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अब मुझे कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 0 0 एक कोऑर्डिनेट तो चाहिए। तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा, जैसे क्रिएट कोऑर्डिनेट 0 0 एवरीथिंग 0 एंड क्लिक अप्लाई। तो यू कैन सी हियर दिस कोऑर्डिनेट हैव बीन क्रिएटेड एंड दिस इज नोन एज सिंगल सेलेक्ट। अब मैं इस पे क्लिक करके यूं करूंगा तो ये हाईलाइट हो गया, ये सिलेक्ट कर दिया। अब मैं इसे सिलेक्ट करा के, इसकी जरूरत नहीं है, मैं ट्रांसलेट यूज कर सकता हूँ, डिवाइड, मर्ज, डिफरेंट ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है, मिरर करा सकता हूँ, रोटेट करा सकता हूँ, किसी लाइन पर प्रोजेक्ट करा सकता हूँ। तो ये सब ऑप्शन मैं नोट के लिए यूज कर सकता हूँ। अब अदर ऑप्शन क्या है, जैसे मुझे अब एक एलिमेंट बनाना है, तो उसके लिए मुझे दो नोट चाहिए। तो मैं जैसे यहाँ ट्रांसलेट पे क्लिक करा, अब ये मुझसे पूछ रहा है कि मूव कराना है या कॉपी कराना है। तो ज्यादातर तो कॉपी कराना पड़ेगा, जब दो, ये नोट तो यही रहना चाहिए। अब इसमें दो चीजें पूछेगा, इक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस। तो जैसे इक्वल डिस्टेंस से तुम कोऑर्डिनेट डिफाइन कर सकते हो, अनइक्वल डिस्टेंस से एक ही डायरेक्शन है। एक डायरेक्शन में मैं 1000 mm लिख दिया कि यूनिट्स में डिफाइन बता दूंगा। अब ये हो गया, यहाँ पे यूनिट्स का ऑप्शन है, ऑलवेज चेंज कर लेना चाहिए किलो न्यूटन और मीटर में। तो जैसे देख रहे हैं कि ये दो नोड बन गए। अब दो नोड के बीच में यहां से तो कुछ नहीं बनेगा, वो एलिमेंट से बनेगा। तो क्रिएट एलिमेंट में जब जब हम जाएंगे तो ये ऐसे करके दिखाएगा कि कौन सा एलिमेंट बनाओगे, ट्रस टाइप बनाना चाहोगे, टेंशन टाइप, या जनरल एलिमेंट, प्लेट। अब तक यहीं तक यूज करते हैं ज्यादातर, प्लेन, स्ट्रेस और ये सब तो नहीं पड़ेगी, सॉलिड की जरूरत तो पड़ती भी नहीं है। और तो आप जब इस पे क्लिक करोगे जनरल, और यहाँ नीचे आओगे, ये प्रॉपर्टीज अभी हमने कोई डिफाइन नहीं करी है, मटेरियल, यहाँ क्लिक करके ये एक बीम बन गई दो नोड से, और इसके नोड नंबर और बीम नंबर ये रहे, नोड नंबर 1 and 2 और बीम नंबर 1। तो ऐसे करके एक बीम बन जाती। अब ये बीम यहाँ से बन गई। अब इस बीम को आपको ट्रांसलेट करना हो एनी डायरेक्शन में, क्योंकि गर्डर जैसे 5 गर्डर हो गए, और फिर तो मैं इधर भेज दूंगा, और फिर मुझे बीम को डिवाइड करना है तो डिवाइड। अब एक्सट्रूड कमांड क्या है, ये भी अच्छी कमांड है एक्सट्रूड। इसमें क्या करती है, मेरे नोड को कन्वर्ट कर देती है एक बीम में अकॉर्डिंग टू माई डिस्टेंस। और इंटरसेक्ट है, जैसे मेरी बीम, दो बीम आपस में कनेक्ट हो रही है और उन दोनों को आपस में तोड़ना है, तो मैं इंटरसेक्ट यूज कर सकता हूँ।
डिलीट करनी हो, रोटेट करनी हो, मिरर करानी हो, री नंबर कॉम्पैक्ट एलिमेंट नंबर और री नंबर कराने हो मुझे एलिमेंट के, ये भी काम आती है। स्टार्ट एलिमेंट नंबर कुछ लिखना हो तो ये सब आ जाते हैं मेरे एलिमेंट के। ये ऑटो मैश, मैप मैश, जितना भी मैश से रिलेटेड होता है ये सारा जाता है प्लेट में। ये स्पेशल कमांड है, ये तो एलिमेंट टेबल है और ये स्पेशल कमांड है, जब जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे, अभी नहीं पड़ेगी। प्रॉपर्टी, अब हम जैसे नोड एलिमेंट से प्रॉपर्टीज में आते हैं, यहाँ पे आती है मटेरियल्स की सारी प्रॉपर्टीज। अब यहीं से चालू हो जाती है। पहले जब आप क्लिक करोगे मटेरियल प्रॉपर्टीज ऐसे ओपन होगा, तो इसमें आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा मेरा कंक्रीट का ग्रेड, मेरा स्टील का ग्रेड, जिस हिसाब से भी मॉडलिंग करनी है। तो जैसे स्टील लिखा, यहाँ मेरा कोड लिखा। अब मेरे पास n नंबर ऑफ कोड अवेलेबल है, आज तो और यूरोप और कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन, दुनिया भर के सारे कोड हैं यहाँ पे। लेकिन हम मॉडलिंग जो करते हैं, अगर हम इंडियन के लिए कर रहे हैं तो ब्रिज के लिए जो करेंगे IS ले लेंगे स्टील की, फिर इसके नीचे मेंशन करेंगे कौन सा ग्रेड चाहिए। लाइक हम, अगर मैं स्टील गर्डर का कर रहा हूँ तो जो होता है वो E350 होता है या 49 होता है, और अगर माइल्ड स्टील है तो E250 ले सकता हूँ। तो ये वाले ग्रेड होते हैं। अब मैं ऐसे यहाँ क्लिक करके कंक्रीट देख सकता हूँ। कंक्रीट यहाँ आएगा, यहाँ पे जो हम कंक्रीट लेते हैं वो लेते हैं IRC, IRS, IS, बोथ आर ओके, 3 of them for the bridges, but I think in the old code you can only old BIDAS you can only see with the IS. They do not have IRC or IRS code. So IRC is for the highway bridges, IRS for the railway bridges, or this is also valid for metro bridges. So this is the only difference. Otherwise, you can use directly IS for all the bridges also, because only your E value going to change. Other things will remain same. आज तो हमारे पास जैसे US यूरो कोड, DS कोड सारे अवेलेबल है। जैसे अब मैंने IRC सिलेक्ट करा तो उसके हिसाब से मैं M30, M40 जो भी मुझे रिक्वायरमेंट होगी मैं ले लूंगा। फिर ये क्लोज करा। अब यहाँ पे इसको भी बंद करके हम ये देख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी है पूरा टाइम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। ये हमारे काम आती है जब हम PCSC गर्डर करेंगे या हम स्टील गर्डर करेंगे, जिसमें हमारी बीम और स्लैब अलग टाइम पे कास्ट होती है। जैसे मैं पहले बीम कास्ट करूंगा, उसके 1 महीने बाद, 10 दिन बाद मैं स्लैब कास्ट करूंगा, क्योंकि ब्रिज में ऐसे ही होता है। टाइम डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ब्रिजेस। तो उसको डिफाइन करने के लिए ये सारी प्रॉपर्टीज है, क्रीम श्रिंकेज, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो मटेरियल लिंक चेंज प्रॉपर्टी। तो ये तब काम आएंगी जब हम उस पर काम करेंगे, PCSC ब्रिज पे या किसी और स्टील कंपोजिट पे। फिर प्लास्टिक मटेरियल, इसकी यूज नहीं पड़ती इतनी ज्यादातर हम प्लास्टिक प्रॉपर्टीज मॉडल भी नहीं करते। फिर आती है सेक्शन प्रॉपर्टीज। सेक्शन प्रॉपर्टीज में क्या होता है, आप कौन से टाइप का सेक्शन यूज करना चाहते हो। लाइक ये इतने टाइप की बीम है, मैं रेक्टेंगुलर बीम यूज करना चाहता हूँ, नाम दे दूंगा बीम, कुछ भी आप नाम दे दीजिए, रेक्टेंगुलर या बीम 1 या टेपमेंट बीम, मिड बीम, रेक्टेंगल नाम दे दिया, यूजर डिफाइन करके। अब मैं यहाँ पे इसकी हाइट लिख दूंगा जैसे 0.5 और इसकी विड्थ 0.3, और जैसे ही मैं प्रेस करूंगा ओके, तो ये ऑटोमेटिकली वैसे इस पर आ चुका होगा, अभी दिख नहीं रहा है। और मैं इसको क्लोज करूंगा। अब ये कमांड है, मेरी बटन है उसको 3D व्यू का, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा ये आ गई। तो बीम काफी बड़ी है क्योंकि 1 मीटर का बस बनाया था मैंने, तो ये बीम दिखने लगी। और आप अब जब इस पे क्लिक करोगे, ये टॉगल प्रीवियस डायलॉग और वर्क ट्री यहाँ पे ऐसे करके बनाने लगेगा कि 2 नोड, 1 एलिमेंट, 1 बीम, मटेरियल डिफाइन नहीं करा और रेक्टेंगुलर मेरा सेक्शन है। तो ये सब चीजें आप यहाँ पे भी देख सकोगे और यहाँ से भी चेंज कर सकते हो डायरेक्टली, इसलिए थोड़ा आसान रहता है एज कम्पेयर टू दी अदर सॉफ्टवेयर। सबसे आसान तो वैसे स्टैड है, उसके बाद अदर सॉफ्टवेयर में भी नॉट आपको डिफिकल्टी नहीं होगी मॉडलिंग करने के लिए और इसके लिए। फिर यहाँ पे सेक्शन मैनेजर है, थोड़ा रीइंफोर्समेंट डिफाइन करना हो या स्टिफनेस चेंज करनी हो, प्लेट स्टिफनेस स्केल फैक्टर है, टेपर्ड ग्रुप है, ये उसमें काम आता है जब आपके कौन सा केबल स्ट्रिप ब्रिज में नहीं, बैलेंस कैंटिलीवर में जरूरत पड़ती है या पियर कैप में जरूरत पड़ेगी इसकी, और बीम के सेक्शन में अलग अलग जरूरत पड़ती है इसमें भी। और तो कुछ जरूरत, हाँ और तो कुछ नहीं पड़ेगी, यहीं तक जरूरत पड़ती है। बाकी ये स्पेशल चीजें हैं, ये जरूरत की पड़ती नहीं है, अगर कोई स्पेशल एनालिसिस है तब जाके पड़ेगी। फिर चौथा पॉइंट जो तीसरा आता है, बाउंड्री। बाउंड्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है और सबसे इंपॉर्टेंट स्टाइल में यही है कि हम बियरिंग को मॉडल कर पाते हैं
बॉडी टैब में अगर अगर आप स्टैंड में कर रहे हैं तो इतना एक्यूरेटली आप बेयरिंग को मॉडल नहीं कर पाएंगे एज कंपेयर टू मिडास. मिडास हैव फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल सपोर्ट सिस्टम. Like if I have vertical direction all D all this will become totally rigid. तो ये rigid कनेक्ट rigid support हो जाएगा like fixed beam. और मैं इसमें क्लिक करूंगा तो ये पिन हो जाएगा मेरी पिन बीम. अब मैं इसमें एक को पिन कर दूं एक को फ्री कर दूं तो मेरी नॉर्मल बेयरिंग वो हो जाएगी मॉडल. और यहाँ पे स्प्रिंग है. स्प्रिंग यूज होते हैं मेरी सॉइल की प्रॉपर्टीज को मॉडल करने के लिए. जैसे मेरे पास के जियोटेक टीम मुझे के दे देगी मॉडल ऑफ सबग्रेड रिएक्शन. तो उस के को मैं यहाँ डाल के अपनी सॉइल की प्रॉपर्टी मॉडल कर लूंगा. फिर मैं उस हिसाब से फिर उसकी बेयरिंग कैपेसिटी और बाकी चीजें भी चेक कर लूंगा. फिर यहाँ पे है इलास्टिक लिंक और रिजिड लिंक. ये दोनों लिंक सबसे ज्यादा यूज होने वाले. इलास्टिक लिंक हमारी बेयरिंग को मॉडल करने के लिए सबसे ज्यादा काम आएगा कि कौन से डायरेक्शन में क्या चीज हमारी फिक्स है फ्री है वो सब इलास्टिक लिंक के थ्रू करेंगे. और रिजिड लिंक के थ्रू दो पॉइंट को जब कनेक्ट करना होगा तो रिजिड लिंक के थ्रू करेंगे. बीम एंड रिलीजेस यूज करते हैं सेकेंडरी बीम्स के लिए. जैसे कोई ब्रिज पे अलग से बीम डालने हो या कुछ और डालने हो जिस जो आपस में नहीं कनेक्ट हो. जैसे स्टील गटर में हमारी ब्रेसिंग होती है या हमारी ट्रस में ब्रेसिंग होती है तो वो उसके हमें बीम एंड रिलीज कराने पड़ते हैं बाय दिस कमांड. और फिर बीम एंड ऑफसेट भी है कि दूसरी साइड ऑफसेट मानना चाहते हो बीम के एंड तो वो भी कर सकते हो. बाकी इफेक्टिव विड्थ और ये सब का भी इतना ये थोड़ा राइट साइड में हमेशा एडवांस रहेंगे जो कि जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी ब्रिज में until unless if you are doing from particular one special analysis. फिर ये आता है लोड टैब. लोड टैब में हमारे सारे लोड्स अवेलेबल हैं. स्टैटिक लोड वो अवेलेबल होते हैं डेड लोड टाइप यू कैन से दैट जो स्ट्रक्चर पे हम बाय नोडल लोड और एलिमेंट लोड अप्लाई कर सकते हैं वो स्टैटिक लोड में आते हैं. फिर हमारे पास टेम्परेचर प्री स्ट्रेस है. टेम्परेचर डिफाइन कर सकते हैं प्री स्ट्रेस डिफाइन कर सकते हैं. मूविंग लोड इसके थ्रू आते हैं. इसमें हमें अपना कोड डिफाइन करना पड़ेगा. जैसे पहले अगर मैं इंडिया सेलेक्ट करूंगा तो ये ओपन हो जाएगा. अब इंडिया में मैं जाऊंगा व्हीकल्स में तो शायद लोगों को पता है कुछ को नहीं पता. यहाँ पे पहले कोड पूछेगा कि कौन सा कोड करना है कि IRC6 और IRS. IRC6 सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे इस टाइप के व्हीकल अवेलेबल हैं कोड में और इस सबको पढ़ के भी रख सकते हो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है. अगर आप ब्रिज डिजाइन में जा रहे हो सारी व्हीकल पता होनी चाहिए. क्लास A क्लास B 70R 40R क्लास AA और फुटपाथ लोडिंग. सो जनरली जो हमारी दो लोडिंग गवर्निंग होती है वो क्लास A होती है और 70R होती है. तो आप इन दोनों में से दोनों को डिफाइन करना पड़ेगा. उनकी लेन के हिसाब से वो लेन डिफाइन करनी पड़ेगी. कोड के हिसाब से सब कुछ चलेगा. लाइव लोड पूरा कोड के हिसाब से होता है. इसमें हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते. जैसे मैं A पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखो क्लास A की लोड. अब मैं 70R पे करूंगा तो 70R में 3 टाइप की लोडिंग आती है. एक व्हील व्हीकल ट्रैक व्हीकल एंड बोगी व्हीकल. तो मिडास के पास आपके पास ये फायदा है सारा लोड ऑटोमेटिकली हो जाता है कि आपको बोगी सेपरेट डिफाइन करने की जरूरत नहीं है. आपको व्हील व्हीकल अलग डिफाइन करने की जरूरत नहीं है. आपको ट्रैक व्हीकल अगर आप किसी ने स्टैंड में काम किया होगा तो उसे पता होगा कि ये सारे व्हीकल आपको अलग अलग डिफाइन करने पड़ेंगे. रिजल्ट बहुत अलग आएंगे. कभी कभार गलती भी हो जाती है लेकिन वो प्रैक्टिस से ही आता है कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा रिफाइंड होते जाते हैं. क्लास A में सिंगल एक ही होता है तो वो एक ही डिफाइन कर रहे हैं. तो ये चीज इंपॉर्टेंट होता है. ये फिर डिस्टेंस भी दिखा देता है नोट टू टेल. यहाँ पे आप देखेंगे तो ये डिस्टेंस भी दिखा देगा. ये सारे डिस्टेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अगर किसी को चेंज करने कर सकते हैं. यहाँ पे एक चीज और होती है ये तो स्टैंडर्ड आ जाते हैं. ये स्टैंडर्ड आ गए. यहाँ पे अगर मैं यूजर डिफाइन क्लिक करूंगा तो यहाँ से मैं अपने स्पेशल लोड भी डिफाइन कर सकता हूँ. जो मेरी एक स्पेशल व्हीकल होती है एज पर IRC6 वो भी डिफाइन कर सकता हूँ. और यहाँ मेरे ब्रिज रूल्स हैं. अगर आप मैं स्टैंडर्ड में जाता हूँ यहाँ क्लिक करता हूँ ब्रिज रूल्स. अब यहाँ पे मेरी ये रेलवे लोडिंग आ गई. जनरली जो आजकल लोडिंग चल रही है वो ब्रॉड गेज की चल रही है. 1.676 मीटर गेज भी यूज होती है लेकिन नैरो गेज तो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है. हैवी मिनरल लोडिंग ये यूज होती है. आपकी कोई मिनरल की रिफाइनरी हो जहाँ पे मिनरल ले जाए जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह. और अगर आपके फुट ब्रिज और फुटपाथ की कुछ है तो वो यहाँ यूज हो जाएगी. तो ये आपके रेलवे की लोडिंग होती है. और फिर आपकी जैसे मेट्रो की लोडिंग होती है वो आपको यूजर डिफाइन में जाके करनी पड़ेगी. तो ये
कहाँ पे लाइट लोड का टैब पूरा यूज हो जाता है। अगर मैं इसको वापस जाके ये कर दूंगा नन, तो ये चला जाएगा। जब तक आप कोड डिफाइन नहीं करोगे, मैं जैसे आज तो डिफाइन करूंगा, अब मुझे चाहिए आज तो LFRD में, तो यहाँ पे व्हीकल चेंज हो जाएंगी आपकी। अगर आप देखोगे HL93 और आपका HL93 ट्रक और HL93 टेंडम दोनों आ जाएंगे आस्तों के हिसाब से। और अगर मैं यूरो कोड कर दूंगा तो मेरे लोड मॉडल 1, लोड मॉडल 3, 1 2 3 सब आ जाएंगे। BS करूंगा तो उसके हिसाब से आ जाएगा। जैसे अब मैं BS करूंगा तो व्हीकल उसके हिसाब से आ जाएंगी। HA लोडिंग, HB लोडिंग, HA+HB, ये सिर्फ इसके हिसाब से है। BD3701। अब मैं अगर BS5400 यूज करूंगा तो HA+HB आ जाएगी। तो अगर मैं असेसमेंट यूज करना चाहता हूँ 450/CS454, तो मेरे ये आ जाएंगे। तो लोडिंग बहुत आसान है इसमें एज कम्पेयर टू अदर, क्योंकि आपका टाइम बचेगा। अदरवाइज आपको अल्टीमेटली करना यही है, लोडिंग ही डिफाइन करनी है हर जगह। आप चाहे मैनुअली करें, बाय एक्सेल करें, बाय एनी सॉफ्टवेयर करें, तो मिडास ये आपको फायदा देगा कि काफी आसान काम आपका, काफी आसान। मैं यूरो कोड में जाऊंगा तो मेरे LM मॉडल LM1, LM2, LM3 आ जाते हैं। इस पे क्लिक करके आप देखेंगे तो लोड मॉडल 1, लोड मॉडल 2, 3, तो ये यूके की है। रोड ब्रिजेस के लिए, फुटपाथ ब्रिज के लिए, रोड। अब मैं इसमें देखूंगा तो ये फटी आ गई इस पे करें, तो ये लोड मॉडल 71, SW2, तो ये सारी लोडिंग आ जाती है। जो कि पहले से है, आपको कोई डिफाइन नहीं करना, बहुत टाइम बचता है। मेन हमारा पर्पज होता है टाइम बचाना और एक्यूरेट काम करना। बाकी आप कोई भी शॉर्टकट मारे, कुछ मारे, लेकिन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो ये लोड टैब में यहाँ पे डायनेमिक लोड है। जैसे मुझे अर्थक्वेक लोड डिफाइन करना, RF फंक्शन, रिस्पांस स्पेक्ट्रम, RF लोड केसेस, और तो ये सब इसी के ही टैब है। ग्राउंड एक्सेलेरेशन क्या रखना है, या टाइम हिस्ट्री करना है एनालिसिस, तो मैं इसमें दे सकता हूँ। या टाइम वेरिंग स्टैटिक साइकिल रखनी है, तो काफी सारी चीजें, एडवांस चीजें भी हैं जो अदर आपको नहीं मिलेंगी। तो ये होता है सीज्मिक लोड, जो डायनेमिक लोड होते हैं। ये आपको इसके लिए केबल स्टे ब्रिजेस के लिए केबल्स पे RF फंक्शन लगाने हैं, तो भी यहीं से डिफाइन होंगे डायनेमिक लोड। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें मिडास में, कंस्ट्रक्शन स्टेजेस, जो प्रिटी मच बहुत कम सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। वो एक तो सोफिस्टिक देता है, ये लूसास देता है, मिडास देता है। 3 सॉफ्टवेयर ऑल ओवर द वर्ल्ड कंस्ट्रक्शन स्टेजेस ज्यादा यूज करते हैं राइट नाउ। वो मिडास तो अभी हर जगह एक्सेप्टेबल हो भी चुका है। उसके बाद जो दूसरा एक्सेप्ट हो रहा है वो सोफिस्टिक है। सोफिस्टिक हमारा यूरोपियन रीजन में बहुत ज्यादा है। मिडास जो है हमारा मिडिल ईस्ट, इंडिया और इधर चाइना, कोरिया, इस साइड ज्यादा है। और US में भी काफी अभी यूज हो रहा है। US में पहले CSI ब्रिज था, लेकिन अब लोग मिडास में काफी हद तक शिफ्ट हो गए। तो वो कंस्ट्रक्शन स्टेजेस में क्या होता है, जैसे मैंने एक बीम कास्ट करी, ये बीम मैंने कास्ट करी, 14 दिन हो गए, अब ये हार्ड हो गई। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, 14 दिन बाद यहाँ पे प्री स्ट्रेसिंग करना चाहता हूँ। तो ये उस हिसाब से ही उसकी कंक्रीट की स्ट्रेंथ और कैपेसिटी कंसीडर करेगी और लॉसेस कंसीडर करेगी, टाइम डिपेंडेंट लॉसेस। फिर मैं क्या करूंगा कि 15 दिन बाद, 14 दिन बाद, जब ये 28 दिन की हो जाएगी, मैं स्लैब कास्ट करूंगा इस पे, तो ये अलग लोडिंग देगी, फिर स्ट्रेसिंग आएंगी। फिर मैं दोबारा प्री स्ट्रेसिंग करना चाहता हूँ, तो मेरे पहले ही लॉस हो चुके होंगे कुछ। फिर मैं उसके बाद बेयरिंग कोड लगाऊंगा, फिर उस पे क्रैश बैरियर डालूंगा, फिर मैं लाइव लोड चलाऊंगा वो सबसे एंड में। जैसे मैं 100 साल के लिए कर रहा हूँ, तो मैं लिख दूंगा 36500 इतने ईयर के लिए मेरा पूरा ये सारी स्टेट डिफरेंट स्टेज में दिखा देगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये कंस्ट्रक्शन स्टेजेस, और इसी की वजह से ही लोग स्टैट को यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसमें आपकी एक्सेल में और या मैनुअली करने में बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। होता सब है, जो भी सॉफ्टवेयर में है सब कुछ मैनुअली हो चुका है, तभी हम सॉफ्टवेयर में पुट करा गया है। वरना अगर मैनुअली कोई चीज पॉसिबल नहीं होती तो वो सॉफ्टवेयर में नहीं डाली जाती। बस सॉफ्टवेयर में कॉम्प्लेक्स चीजें आसानी से और जल्दी हो जाती है। फिर हीट ऑफ हाइड्रेशन है, जनरली यू विल नॉट सी दिस। सेटलमेंट है, सेटलमेंट इंपॉर्टेंट होता है। जनरली सेटलमेंट हम करते हैं या तो इंटीग्रल ब्रिज में या कंटिन्यूस ब्रिज में, जिसमें हम अज्यूम करते हैं एक फाउंडेशन हमारी किसी 10 mm से या 20 mm से सेटल हो गई, उसकी वजह से डिफरेंट स्ट्रेटेजी जनरेट होती है, उसकी वजह से बेंडिंग आती है। फिर लोड टेबल, कोई लोड देखना चाहते हैं, स्टैटिक, टेम्परेचर, तो ये सब है। फिर एनालिसिस है, यहाँ कुछ है नहीं। जैसे मैं
पी डेल्टा करना चाहता हूँ या बकलिंग एनालिसिस करना चाहता हूँ, आइगन वैल्यू एनालिसिस से मुझे फ्रिक्वेंसी मिलेगी, हीट ऑफ वेरिएशन दिखाया, फिर मूविंग लोड के ऑप्शंस हैं कुछ, फिर सेटलमेंट के ऑप्शन, नॉन लीनियर एनालिसिस करना है, कंस्ट्रक्शन स्टेजेस का ऑप्शन, सस्पेंशन ब्रिज का करना है, कुछ बाउंड्री चेंज करनी है किसी, उसके बाद फिर टेंडन लॉस पता करने हो या इसके अप्रोक्सीमेट टेंडन लॉस क्या आ रहा है, कौन से कोड से करते हैं, तो इस हिसाब से ये सब यूज होते हैं। और रिजल्ट टैब में जब जाएंगे तो आपको रिएक्शन मिल जाएंगे, डिफॉर्मेशन, फोर्सेस, स्ट्रेसेस, हीट ऑफ हाइड्रेशन, बीम एलिमेंट, डिटेल रिजल्ट, और ये हमारी मोड शेप और ये फ्रिक्वेंसी। आपको अगर ये देखना है मूविंग लोड ट्रेसर इंपॉर्टेंट होता है कि किस लोड पे, जब मेरा लोड के लाइव लोड कहाँ पर है जो मेरा हाईएस्ट बेंडिंग मोमेंट दे रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर केबल कंट्रोल है, केबल रिएक्शंस हैं, केबल कंट्रोल, केबल स्टेम ब्रिजेस और सस्पेंशन के लिए, कैम्बर रिएक्शन हमारे स्टील ब्रिजेस के लिए आते हैं। फिर रिजल्ट की टेबल्स हैं, यहाँ क्लिक करके बाकी फोर्सेस भी निकाल सकते हैं, तो ये सब ये आ जाता है। अब आप अगले में जाएंगे पीसीएससी, ये है डिजाइन टैब। एनालिसिस रिजल्ट के बाद हमारे डिजाइन टैब चालू हो जाते हैं, यहाँ पे हम अपना कोड डिफाइन करके फिर पैरामीटर्स क्या रखने हैं, क्या क्या जैसे अब मुझे अल्टीमेट चेक करना है रेजिस्टेंट या शियर रेजिस्टेंस चेक करना है, टॉर्जन रेजिस्टेंस, एसएलएस में क्या चेक करना है, ये सब चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। फिर डिजाइन इनपुट पोजीशन, फिर एक्सपोजर क्लास कनेक्टर, यहाँ डिजाइन पे क्लिक करके ये पूरा डिजाइन भी कर देगा। मिडास भी पूरा डिजाइन कर सकता है, लेकिन जनरली हम पीसीएससी तो कर लेते हैं, लेकिन हम आरसीसी नहीं करते हैं इससे। आरसीसी हम अपना एनालिसिस करके वो एक्सेल से ही करते हैं या मैनुअली करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मिडास जो है थोड़ा कंजर्वेटिव रिजल्ट देगा आपको, उससे क्या होगा, इन्फोर्समेंट ज्यादा जा सकता है। लेकिन अगर हम पीसीएससी कर रहे हैं तो पीसीएससी में ठीक है, अगर हमारी थोड़ी केबल ज्यादा एक्स्ट्रा भी जा रही है, क्योंकि ब्रिज थोड़ा उसमें रहेगा कंप्रेशन में, वो क्या थोड़ा ज्यादा नहीं कर सकते हैं, ज्यादा करेंगे तो वो फिर स्लैब फेल हो जाएगी टेंशन में। तो ये पुश ओवर एनालिसिस जनरली ये भी किसी स्पेशल ब्रिज के लिए होता है, केबल स्टेयर सस्पेंशन के लिए नहीं। फिर डिजाइन पार्ट में यहाँ पे नॉर्मल बीम्स के लिए है, जैसे आपके नॉर्मल बीम्स होंगी या कॉलम होंगे, जैसे बिल्डिंग का कॉलम करते हैं किसी और सॉफ्टवेयर में, या उसकी बीम्स करते हैं, तो ये स्टिकी बीम है, एसआरसी बीम है, आरसीसी बीम, कंपोजिट डिजाइन, और स्टील ऑर्थोडेक डिजाइन भी अवेलेबल है। जनरली इंडिया में तो ब्रिज ही कोई है ही नहीं ऑर्थोडॉक टैक का। और फिर रेटिंग्स है, रेटिंग फिर आज तो और सिर्फ उसके हिसाब से है यूरो कोड। क्वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्वेरी नोट, क्वेरी एलिमेंट्स, क्वेरी नोट टेबल, जैसे मैंने यहाँ क्लिक करा, अब मुझे जानना है इन दोनों नोट के बीच में डिस्टेंस क्या है, तो मैं इसमें क्लिक करके एक ये करूंगा, ये डिस्टेंस बता देगा कि मेरा ये 1 मीटर आ रहा है, तो ये क्वेरी नोड है। क्वेरी एलिमेंट पे क्लिक करके यू करूंगा तो ये सब बता देगा, उसकी लेंथ कितनी है, उसका वेट कितना है, प्रॉपर्टी और ये सब क्या लगा हुआ है। फिर यहाँ पे टूल्स आते हैं, टूल्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूनिट सिस्टम है, आपको यूनिट चेंज करनी हो यहाँ से कर सकते हैं, यूनिट चेंज करनी हो यहाँ से भी कर सकते हैं। प्रेफरेंस की भी जरूरत थोड़ी कभी कभार अगर देखना हो तो कोई, ये इंपॉर्टेंट होता है एमसीटी कमांड शेल। ये ऐसे ही है जैसे आपका स्टार्ट एडिटर होता है, इसमें आप अपनी इनपुट डाल सकते हो किसी और मिडास से कॉपी करके, और वो यहाँ पे ज्यादा रन हो जाएगा इजीली। ये पता है कि जब हमारा पड़ेगा। फिर ये सेक्शन प्रॉपर्टी कैलकुलेटर है, इसेंट्रिक स्लैब और उसके लिए यही बताऊंगा। टेंडन प्रोफाइल जनरेटर, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बिल ऑफ मटेरियल है, आपको अगर स्टील ब्रिज है और आपको स्टील की क्वांटिटी फाइंड करनी है कि भाई मुझे अपने डीपीआर में लिखनी है भाई कितनी क्वांटिटी आ रही है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन ये सिर्फ स्टील ब्रिज की देगा, आपको कंक्रीट ब्रिज की क्वांटिटी नहीं देगा, कंक्रीट ब्रिज में कितना रीइंफोर्समेंट डाल ले उसकी क्वांटिटी नहीं देगा, सिर्फ प्लेट गडर्स की देगा, या हमारा ये हो गया कौन से ब्रिज होते हैं, हमारा ट्रस हो गया, बूस्टिंग हो गया, उनकी बताएगा। और ये सब हो गया कन्वर्ट मेटा फाइल टू डीएक्सएफ फाइल, डायनामिक रिपोर्ट जनरेटर,
डायनेमिक रिपोर्ट इमेज, टेक्स्ट एडिटर, ये सब एक्स्ट्रा यू कैन से बटन्स है अवेलेबल। तो बेसिकली ये सब इम्पोर्टेंट होता है, सबकी जरूरत पड़ती है कहीं ना कहीं, हर एक मॉडलिंग में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत जरूरत पड़ती रहती है। तो ये बेसिक हो गया। अगर यहाँ किसी को, मेरे हिसाब से अभी मिडास को पूछ लेना, अगर किसी को कुछ पूछना हो या कुछ जानना हो कि हम ये काम कर सकते हैं तो वो आप पूछ सकता है, क्योंकि मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया मिडास के बारे में। एनीवन हैव एनी डाउट और दे सर वांट? हाँ, ये बोलिए। सॉफ्टवेयर से एक्चुअली ब्रिज का कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो इसका बेसिक पढ़ाना बहुत जरूरी होगा, नहीं तो फिर हाँ, आप मैंने अभी सॉफ्टवेयर का ब्रिज का बेसिक, जैसे मैं बताऊंगा कि ऐसे ब्रिज, अब ब्रिज का बेसिक तभी मैंने पूछा था किस किस को कितनी नॉलेज है। अब मुझे जैसे हाँ सर, ब्रिज का जो बेसिक होगा वो तो फिर ब्रिज कब से चालू हुए और क्यों हुए वो तो शायद नहीं, लेकिन मैं इनिशियली बता दूंगा कि कैसे क्या करते हैं। कि अब आपके पास कुछ नहीं है, अब मैं यही बताया था यहाँ पे कि एक हाईवे इंजीनियर जो होगा, एक जैसे हाईवे ये इंजीनियर, डीपीआर नहीं, जैसे एक्चुअली मैं बोलना था जैसे पीपीटी हो जाता है उसके अंदर न्यूमेरिकल कैसे जैसे डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि ब्रिज एकदम पूरा डिफरेंट पार्ट है। मैं देख लेता हूँ, मेरे पास थी तो सही थी। ये नहीं, एक मिनट, क्योंकि मैंने तो ये आपको ये बता दिया ब्रिजेस की पीपीटी। एक मिनट, आ गया PCS की image। लोड की है, टाइप की है, ब्रिज बेयरिंग, सर एक इसकी, हाँ क्वेश्चन था मेरा। हाँ, बताइए। सर मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे कन्वेंशनल ब्रिजेस है ना, हाँ हाँ, उनका कंप्लीट डिजाइन इस सॉफ्टवेयर पे ही हो जाएगा या फिर हमें मैनुअली एनालिसिस कंप्लीट करके डिजाइन आप सॉफ्टवेयर पे कर सकते हैं कन्वेंशनल ब्रिज का। कन्वेंशनल ब्रिज हाँ, और जो जैसे जो आपका अभी आरसीसी गडर हो गया या पीसीएससी गडर हो गया या आपका पी स्टील गडर हो, सर ये पीएससी गटर भी इस पर डिजाइन हो जाएगा ना सर? हाँ पूरा हो सकता है। ये है ना पीसीएससी कम टैब, जब भी तो मैंने दिखाया था पूरा डिजाइन हाँ हो हाँ जी, सकता है। अच्छा हाँ, अच्छा। मैं कंप्लीट आप एनालिसिस प्लस प्लस मॉडलिंग, हम मॉडलिंग प्लस डिजाइन और प्लस रिपोर्ट जनरेशन, ये रिपोर्ट भी रिपोर्ट बना के दे देगा। एंड बिल्कुल, ड्राइंग, ड्राइंग ड्राइंग नहीं देगा, दैट यही मैं बता रहा हूँ, ड्राइंग हाँ आपको इनसे कहीं से नहीं मिलेगी। ड्राइंग के लिए या तो आपको हाँ वो टेक्ला आना चाहिए या आपको कोई आपके नीचे ड्राफ्टमैन होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए। ड्राइंग, ओके कभी भी ड्राइंग जो होती है वो इन ब्रिजेस से नहीं आती, क्योंकि ड्राइंग के जो अच्छा सॉफ्टवेयर होते हैं, ये सॉफ्टवेयर ज्यादातर तो पहले तो उसमें करते थे सब काम, कैड में, ऑटो कैड। और मुझे भी ऑटो जी कैड जी ही आता था, मतलब हम्म मैंने भी इनिशियली ऑटो कैड ही सीखा है। लेकिन हाँ अब क्या हाँ। है, पीपल माइग्रेट हो रहे हैं, आपका रैबिट यूज कर रहे हैं। एक सर जो जैसे हम प्रैक्टिकली जो हमारी आईपीएससी आई गटर होता है ना, तो हाँ उसका जो शेप है, एग्जैक्ट शेप जो हाँ एप्लीके आजकल अप्लाई हो रहा है प्रोजेक्टों के अंदर ना, हाँ हाँ, मैं तो दिखा भी इसमें दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी, तो इसमें जनरेट करने में थोड़ा सा जो स्टैंडर्ड सेक्शन दिया है ना, जहाँ से हम सेक्शन एज्यूम लेते हैं देखो मैं एक सॉफ्टवेयर में ब्रिज से, खोलता हूँ, जैसे ये है bridge। हाँ जी जी, तो वो क्या एग्जैक्ट सेक्शन इसमें जनरेट हो जाएगा ना सर, जो बिल्कुल पीएससी एग्जैक्ट कटर यही है? दिखाना चाह रहा हूँ, मैं एग्जैक्ट दिखाना चाह रहा हूँ, एक मिनट, जी मैंने करा हुआ है। वो आपको 3D में ही पता चल जाएगा सब कुछ, बिल्कुल हाँ एक्यूरेट जैसे सेक्शन, हम्म, एकक, डेप्थ, हाइट। अब ये देखो, ये है लाइन मॉडल, जिसमें आपको सिर्फ नोड दिख रहे हैं और हाँ डेफिनेट वो दिख रहे हैं, इसे कहते हैं हम लाइन मॉडल, जो नोड और लाइन दिखती है। नोड अब और मैं एलिमेंट दिख रहे हैं। हाँ, एलिमेंट दिख रहा है। अब जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये देखो, जी अब इसमें मैंने एक्यूरेट हमारी जो विड्थ है, क्योंकि ये सेक्शन उस पे थिक होता है, यहाँ पे थिन होता है जब हम उसमें चले जाते हैं। जी जी, हाँ, हाँ और टेपरिंग पार्ट है जो, टेपरिंग होती है, यहाँ पे टेपरिंग अप्लाई नहीं करी, वो भी हो जाएगा इसके थ्रू, सब पूरा एक्यूरेटली। ऐसे ही जो पियर कैप आता है, ये अबटमेंट आएगा, फाइल कैप आएगा, फाइल्स आएंगी। जी जी, जो बिल्कुल, बस यहाँ, ट्रांजिशन पार्ट है सर, है, ट्रांजिशन पार्ट हो, ट्रांजिशन हाँ पार्ट है वो जो टेप जी। हाँ, और तो सर स्लैब जैसे आएगी। अपना जैसे अपनी बॉटम फ्लैंज, टॉप फ्लैंज और ये आपका स्टेम बीच का इंटरमीडिएट जो हो गया आपका, हाँ, गडर्स हो तो गए, ये सब जैसे बोलना। है ना, तो हम्म, जैसे बॉटम फ्लैंज जो होती है ना सर, उसमें जैसे पहले तो आपका रेक्टेंगुलर शेप है,
फिर हाँ आपके बाद वो भी है, वो भी है, एक मैं एक और मिनट दिखाता हूँ, हाँ, एक मिनट। हाँ, वो ब्रिज, रुको मुझे ओपन सोचने दो कौन सा होगा। वो भी हाँ, है मेरे पास, मैं तुम्हारी बात समझ गया तुम क्या देखना चाह रहे हो, मैं दिखा भी देता जी हूँ। हाँ, वो तो क्या मॉडल मांग रहे हो एग्जैक्टली ड्राइंग्स जनरेट हो में? जाना, मैं एक मिनट आज ही कर रहा था ब्रिज, मैं क्योंकि समझ गया, वो ड्राइंग गटर से समझा अभी देता हूँ मैं। वो गटर अभी बहुत ट्रेंड में है, जनरली वही हाँ हाँ ब्रिजेस हाँ, मैं ज्यादा है। बता रहा हूँ आपको क्या कहना चाह रहे हो, आप ये कहना चाह रहे हो। ट्रेंड में नहीं है, वही होते हैं ज्यादातर, वो डिपेंड करता है हाँ क्या वही, स्पैन है। ये हाँ यही वाले ये गटर ऐसे चल रहे करके, हैं ये अभी। इसे बोलते हैं बॉटम बल्ब और टॉप फ्लैंज। अच्छा, बॉटम को बॉटम फ्लैंज बॉटम नहीं बल्ब क्या होता है, बोलते हैं? इसको बल्ब बोलते हैं, अच्छा बॉटम बल्ब। अच्छा, बल्ब, ओके ओके। हाँ, तो और ये ये जो होता है, ये इंटरमीडिएट, इसलिए डालते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या करते हैं, मैं पीटी यहाँ पे एडजस्ट करना चाहता हूँ 2 केबल, मैं इसको और बड़ा करके 3 भी कर सकता हूँ, ये तीसरी भी जी, ला सकता हूँ नीचे। तो ये इसलिए ही ओके, यूज करते हैं, वरना बॉटम कि बल्ब का ऐसा कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं होता। मैं अच्छा विदाउट अच्छा, विदाउट बल्ब भी कर सकता हूँ, यहाँ पे क्या है, मेरा छोटा स्पैन है, ये सिर्फ 20 मीटर का हाँ, स्पैन है, तो यहाँ पे बॉटम हम्म, बल्ब की जरूरत नहीं। ये मेरा 40 मीटर का स्पैन है तो 5 केबल है, यहाँ मेरा छोटा स्पैन हम्म। है 3 केबल है, तो मैं उसको एडजस्ट कर रहा हूँ उस हिसाब से। और अच्छा, इसका सीयर से कोई लेन देन नहीं है क्या बॉटम बल्ब का, सर? सीएफ का सीयर को, बॉटल बल्ब से ज्यादा नहीं होता, ज्यादातर हाँ, डैप से होता है और वेब से होता है। अच्छा, वेब से, और हाँ, और डैप से, और क्या होता है, सपोर्ट की, हाँ सपोर्ट पे मैं चौड़ा कर दे रहा हूँ ना, हाँ हाँ, जी जी, लेकिन बीच में मुझे इतनी शेयर आती नहीं है, मेरी हाँ नियर हाँ, सपोर्ट आएगी, शेयर जो आएगी, जी जी इसलिए सर, बीच में हम कम कर देते हैं हमेशा। तो बीच ओके, में वो रजिस्ट हो जाती हाँ, है डैप से ही डायरेक्ट। हमारे सीयर तो मैक्सिमम सर बॉटम में एक्ट करेगा ना सर, बॉटम पे अप्लाई क्या होगा? चीज शेयर? हाँ सीयर, शेयर तो थ्रू जब, आउट आती है ना, थ्रू आउट वेब आती है। हाँ मैं मैक्सिमम सीयर फोर्स, नहीं, मैक्सिमम जो शेयर पोर्ट आएगी नियर टू सपोर्ट आएगी, जैसे हाँ ये है, ये सपोर्ट हाँ, है लोकेशन, तो यहाँ तुम्हारी सबसे ज्यादा होगी, फिर कम होती चली हम्म, जाएगी। ओके, यहाँ तक राइट की राइट, इसी में ही दिखा देता हूँ, ठीक, शायद ये रन हुआ हुआ है, नहीं है मुझे, हम्म, तो वो उस हिसाब से करते हैं। जी सर, जी सर, लेकिन अभी जो वो पीपीटी मांग रहा था शायद है नहीं, मैं वो दिखा दूंगा कि एक्चुअली सर अभी जो भी बात बोले उसमें मुझे लग रहा है मुझे 5% समझ में आया, इसलिए मैं हाँ, बोल रहा हूँ मुझे बेसिक वो से चाहिए सबके। मैं समझ गई, इसलिए मैंने पूछा भी था कि किसी को बेसिक से चाहिए, या जैसे ज्यादातर लोगों को ब्रिज की नॉलेज है थोड़ी बहुत, कि गर्डर्स क्या है। नहीं और सर, वो बेसिक्स आपको देना पड़ेगा। अब हाँ ये भी रिक्वेस्ट होगा सर कि आप मुझे दो हाँ, एक जैसे बुक का मुझे पीडीएफ भेज देते, क्योंकि हम भी लोग पढ़ेंगे तो कुछ ज्यादा समझ में नहीं नहीं, आएगा। मेरे पास ब्रिजेस की तो सबकी है, जैसे मैं जब पीसीएससी गडर पढ़ाऊंगा उसकी पीपीटी दे दूंगा, आरसीसी गडर में उसकी, या कन्वर्ट में उसकी, जब हम सुपर बॉक्स गडर जाएंगे या कंटिन्यूअस स्पैन में जाएंगे उसकी, तो वो सब तो मैं दे दूंगा, लेकिन ज्यादातर और बेयरिंग वेयरिंग की भी है, इसकी थी तो, लेकिन मुझे मिल नहीं रही है, मुझे बाद में मैं देख के नेक्स्ट लेक्चर में वो। हाँ सर, जिस हाँ जो भी लेक्चर आप ले रहे हो सर हाँ उसका पहले बेसिक हो जाता ना, हाँ हाँ, नहीं तो फिर बेसिक बेसिक तो हम हमेशा डिस्कस हाँ करेंगे, थ्योरी इंपॉर्टेंट होती है, विदाउट थ्योरी हाँ, आप समझोगे तो वो वैसे ही सिर के ऊपर से चला जाएगा। वही मैं अभी एक हाँ बात जो बोले, सॉरी मैं नाम नहीं जान रहा हूँ उनका सर, हाँ बट हाँ हाँ। मुझे उसमें कुछ ही वो वर्ड समझ नहीं में वो समझ आया गए ना, तो। देखो मैंने ड्राइंग दिखाई, उन्होंने समझा दिया, वो हम्म, इसकी बात कर रहे थे हम्म, बॉटम बल्ब की और ये सब। अब जैसे तो ये सब बॉटम बल्ब क्या एक्यूरेटली, होती है आज मैं सुना ही नहीं, पहली बार सुन रहा हूँ सर। हाँ वो गर्डर का बॉटम आपको बट बॉटम बल्ब कह देते हैं, और नाम होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। जैसे अब ये क्या है, ये इसको पूरे को गर्डर बोलेंगे, ठीक है, ये एक पूरा गर्डर है। अब इसमें क्या है, कंपोनेंट्स हैं, ये पूरा, ये जो है ये 265 ये वेब है, जो 110 है ये मेरा फ्लैंज है, प्लेन जो सर। ये 500 है ये मेरा बॉटम बल्ब है। लेकिन हाँ जब ये सपोर्ट पे आ जाता है तो हाँ, सपोर्ट जैसे पे, एक्चुअली हाँ ये सर जैसे अभी हुआ, क्योंकि सर हाँ, बीटेक पार्ट में ब्रिज डिजाइनिंग उतना कोई नहीं टीचर बीटेक में पढ़ाता है नहीं। कहाँ, एमटेक में फिर भी आ जाती है, बीटेक में तो नहीं एमटेक में भी करते। उतना नहीं रहती है सर, मैं कर रखा हूँ एमटेक उतना। डिपेंड करता है वो कि तुम हम्म, कितने थे सीरियस, और तुम्हारा जो टीचर पढ़ाने वाला था वो कितना हाँ सीरियस था, हाँ वो वही उस पर ही सर। डिपेंड करता है। तो इसीलिए हम लोग को बेसिक चाहिए, और मैं बोलूंगा सर आज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक दो बुक पीडीएफ आप भेज दो ताकि हम नहीं, लोग मैं बेसिक बुक तो स्टार्ट मैं कर बिल्कुल दो। दे दूंगा, बुक में तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोलता हूँ, अमन ने शायद पता नहीं वो वेबसाइट से उसने कनेक्ट कर दिया है कुछ, तो मैं उससे बोलूंगा कि बुक डायरेक्ट सर ड्राइव का लिंक डायरेक्ट दे वेबसाइट दे। वेबसाइट तो सर एक्चुअली लॉग इन हो ही नहीं पा रहा नहीं है। नहीं, वो माल फंक्शन हो गया होगा, वैसे तो सबको ड्राइव पे रखा हुआ था लिंक, अमन को ही पता रहता है, वो चेंज करता रहता है, तो मैं बोल दूंगा कि सारे बुक्स के वो डाल दें, वरना मैं भी अगर कोई बुक मिलेगी जो बेसिक ब्रिज की है, मैं ग्रुप में ही डाल दूंगा। है तो मेरे पास ग्रुप बुक्स, लेकिन मुझे एक बार देखना पड़ेगा बेसिक वाली कौन सी है, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट ब्रिजेस के हिसाब से चेंज होगी। उनके लिए तो ठीक है सर, जो ब्रिज बैकग्राउंड से हैं, जो अपना नहीं नहीं, जॉब तुम करे हुए। इनिशियली वो बुक से पढ़ोगे तो सब क्लियर होता चलेगा, वो हाँ मतलब सर। बेसिक वाली कह रहा हूँ।
वो सबके काम आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं देखता हूँ कौन सी वो। Books, bridge book, ये किसका था ना, डीजे विक्टर का सर, किसका? एक एसेंशियल ऑफ ब्रिज इंजीनियरिंग बहुत सारी डी है। जॉनसन विक्टर का। नहीं नहीं, बाहर की किताब मत पढ़ो यार। इंडियन की एक बहुत अच्छी है, वीके रहना अच्छी है, लेकिन वीके रहना फिर एडवांस भी हो एक जाती है। के राजू, हाँ, कृष्णा के राजू राजू। भी है, कृष्णा राजू है, कृष्णा राजू है, वीके हाँ, रहना है, कृष्णा राजू है। जिसका बेसिक मतलब कॉन्सेप्ट मिल सके एक जो। मिनट। हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैं दे दूंगा। मैं यही देख रहा हूँ मेरे पास कौन सी है, सिविल इंजीनियरिंग हैंडबुक की पेज। ज्यादातर ये कौन सी है? डिजाइन ऑफ हाईबुक, डिजाइन एग्जांपल, सारे एग्जांपल आ रहे हैं। डिटेल डिजाइन ऑफ कंपोनेंट इंक्लूड द चैनल। मैं एक मिनट ये देखता हूँ, अगर मैं ये तो मैं भेजता हूँ तो तुम पढ़ पाओगे या नहीं, इससे ही पता चल जाएगा। बेसिक प्रिंसिपल स्ट्रक्चर नहीं, इसमें नहीं है। ये नहीं, वीके नरम से नहीं समझ पाओगे, ये वीके रहना है। और बहुत आजकल चलो वो मैं दे दूंगा, मेरे पास है तो, लेकिन इसमें नहीं है। दूसरी एक और उसमें थी, लैपटॉप में नहीं। सर हम मिडास के अंदर केवल सुपर स्ट्रक्चर ही डिजाइन कर सकते हैं, जैसे सुपर, सब और फाउंडेशन तीनों कर सकते हैं? हाँ देखो, मिडास के साथ एक और चीज आती है, जी ये जब हम टूल्स में जाएंगे, जी यहाँ पे आता है जनरल सेक्शन डिजाइनर। जी। इसके थ्रू हम अपनी फाइल्स और फाइल क्लियर कर सकते हैं। फाइल कैप जनरली हाँ। हम मैनुअली ही करते हैं, क्योंकि फाइल कैप का जो डिजाइन अगर हम सॉफ्टवेयर से करते हैं उसको एक्यूरेट हम्म। मानते नहीं है, अच्छा क्योंकि अच्छा, वो। जो पायल की बात कर रहा था सर, पायल। हाँ, फाइल और क्लियर कर सकते हैं इसके थ्रू, जीएसटी के अच्छा, थ्रू। पायल कैप मैनुअली करेंगे? फाइल कैप मैनुअली करते हैं, क्योंकि फाइल कैप के साथ इशू क्या है, फाइल कैप बहुत ज्यादा अलग बिहेवियर देता है सॉफ्टवेयर में, और जो हाँ। मैनुअल फोर्सेज आती है उसके हिसाब से लग देता है। हमें फाइल अच्छा। कैप को चेक करना पड़ता है कि वो क्या बन रहा है, पहले तो कॉर्बल बन रहा है या फिर नॉर्मल बीम बन रहा है, फिर उससे हिसाब अब पियर कैप भी नहीं कर पाते इनके चक्कर में। तो फाइल कैप और पियर कैप हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है सॉफ्टवेयर, ये करते ही नहीं है। तो सर हमारे जो ये कोर्स में तो हम्म। थ्रू आउट डिजाइन रहेगा, हाँ, थ्रू आउट वो तो फाउंडेशन? मैनुअली मैं बताऊंगा ना, जी बाय जी सर। एक्सेल या मैनुअली सॉफ्ट, तो जी उसके सर। थ्रू। वो तो मैनुअली तो मैं अच्छा। सबका ही बताऊंगा ही डिजाइन कैसे करते हैं, जी और बाय जी सॉफ्टवेयर भी दोनों चीजें रहेंगी, क्योंकि बाय मैनुअली तो आप सीख पाओगे और उसको वो कर पाओगे कि हाँ हाँ ये जी। सॉफ्टवेयर सही दे भी रहा है, रिजल्ट नहीं दे रहा। जी सर, वो एक्चुअली तभी हो मेरे पाएगा। प्रोजेक्ट में ना जो भी कॉन्ट्रैक्टर हमें ड्राइंग डिजाइन सबमिट करते हैं ना, हाँ हाँ जैसे हम लोग में एज अथॉरिटी इंजीनियर पार्ट में जो मैं हूँ, तो हमारे हाँ, पास तो वो आपको चेक डिजाइन करनी पड़ती आते है। हैं। तो हम्म। डिजाइन ड्राइंग रिव्यू करते हैं ना, तो हम तो क्या ड्राइंग रिव्यू करते हैं, जिस पर कोडल प्रोविजन उसमें क्या क्या हाँ, आप डिटेलिंग देखो, सबसे इनकॉर्पोरेट, इम्पोर्टेंट तो क्या क्या डिटेलिंग होती है। डिटेल्स, क्या क्या इनकॉर्पोरेट करना है, कुछ मिसिंग इन है जैसे, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल तो ठीक है। वो सब जॉब रहता है। तो हमने पढ़ा तो है सारी डिजाइन को कि भाई क्या क्या है, पर सॉफ्टवेयर पे करना पहली बार ही सीख पाएंगे। आप नहीं, अब पढ़ा चीज अलग है और उसको हाँ। अप्लाई करना अलग चीज है, क्योंकि हाँ कॉलेज में तो सब पढ़ के आए हैं, सब बीटेक पास है, नहीं नहीं, बीटेक या जैसे डिप्लोमा पास कंसल्टेंट तो के है। डिजाइन आते हैं ना, वो हमने डिजाइन को तो स्टडी किया है, जैसे वो डिजाइन ड्राइंग दोनों ही सबमिट करता है हम लोगों अब को वो ना। डिजाइन जो देगा वो इस तरीके से दे देगा आपको, देखो ये हाँ, मेरे पास डिजाइन रिपोर्ट, आ गया। डिजाइन रिपोर्ट जो हाँ, देता है रिपोर्ट भी अपना। थी, ओपन नहीं है, तो वो होती है करीब 200-300 पेजेस की, हाँ वो लेकिन देता उसमें है से हमें। काम का सिर्फ 20-30 पेजों में ही होता है। हम्म। वो तो जानबूझ के थोड़ी बड़ी भी दी जाती है कि भाई लगे तो सही, कुछ हाँ हैवी काम किया है हमने। हाँ हाँ हाँ। उसमें कुछ चीजें तो इरेलेवेंट होती है, लेकिन वो जरूरी भी होती है, वो रखनी भी होती है कि हाँ, एक्सप्लेन करो ब्रिज के बारे में, बताओ। फिर काफी सारी जी। एक्स्ट्रा चीजें भी निकाली जाती हैं। हाँ, लगे तो कि कुछ वर्कआउट किया है। नहीं नहीं, वर्कआउट होता है, लेकिन हर चीज दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, काफी बार एक्स्ट्रा दिखाते हम्म भी है, काफी बार हम्म। हाइड भी कर देते हैं। तो वो टोटली जी डिपेंड सर। करता है किस टाइप का ब्रिज है और क्या दिखाना चाह रहे हैं। यस सर। ओके, तो
PCSE गटर की बड़ी होती है क्योंकि हमें उसमें हर एक उसकी देनी पड़ती है, हर एक कंस्ट्रक्शन स्टेजेस की। आपका नॉर्मल हाँ आई ये गटर सर। है तो वो उसकी छोटी बन सकती है, आई गटर भी है, और नॉर्मल ये है हम्म। हमारा RCC गटर, उसकी छोटी बन जाएगी। अब जैसे हम सी मिडास से करेंगे उसकी तो बहुत छोटी बन जाएगी, मिडास तो डायरेक्ट भी दे देगा ये, और बस हमें सब स्ट्रक्चर फाउंडेशन दिखाना पड़ेगा अलग से, या हम सेम इसमें भी कर सकते हैं। तो मिडास के थ्रू काफी शॉर्ट हो जाती है, बाय मैनुअली कर रहे हैं तो काफी बड़ी रहती है। जी वो सर, मैं समझ हमारे गया, कोर्स वो में सर किसी, ये बॉक्स भी रहेगा क्या, बॉक्स हाँ और बॉक्स गटर भी सेगमेंट? रहेगा, केबल स्टे भी रहेगा, जी सब रहेगा। जी सर जी। बॉक्स गटर, कंटिन्यूस बॉक्स गटर जैसे सब दो होते हैं। तरह के बॉक्स की दो कैटेगरी होगी, जैसे सेगमेंटल, कास्टिंग सीटू, या फिर वो सेम होता है, मैं बता दूंगा कि हाँ जी। फर्क क्या होता है सेगमेंटल में हाँ और कास्टिंग हाँ सीटू। जी। वो ही सब तो इसमें कंस्ट्रक्शन स्टेजेस में इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा ये अच्छा। हाँ, ये चीज ही यहाँ पे मिडास में कर सकते हो, वो आप मैनुअली करना मुश्किल होता है, वो वो यहाँ लेंथी पे कर सकते हैं। होता है। हम्म, तो वो टाइम सेविंग और ये सब सेगमेंटल हम्म, और कास्टिंग सीटू और मे बी प्री कास्ट एज बिल्ड लेकर आ रहे हो, जैसे अभी जो हमारी इंडिया में हाई स्पीड रेल बन रही है उसमें एक ही साथ पूरा सुपर स्ट्रक्चर बना के वो डायरेक्ट उस पर लगा रहे हैं, उसमें जब सेगमेंटल यूज नहीं कर रहे, हाँ तो ये जो फुल उसे कहते हैं फुल स्पैन मॉडलिंग, ज्यादातर फुल स्पैन कंस्ट्रक्शन। अच्छा 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 अच्छा। तो वो एक साथ ओ, पूरा यूज कर रहे हैं, उसमें सेगमेंट नहीं है। हम्म ज्यादातर हम्म। सेगमेंट होता है आजकल मेट्रोज में तो सेगमेंट है सारा, अगर यू हाँ गटर है तो मेट्रो। फुल स्पैन है, वरना बॉक्स हम्म। गटर है तो सेगमेंट है। तो वो टोटली डिपेंड करता है किस टाइप की हमारे पास। पहली बात, वो कॉन्ट्रैक्टर भी उसमें काफी इन्वॉल्व होता है कि भाई मैं तो, मेरे पास ये मशीन इन्वॉल्व है, मैं इसको यूज करना चाहता हूँ, मैं अच्छा सर, फुल स्पैन नहीं कर इसमें सकता। ये भी मतलब सॉफ्टवेयर से क्लियर हो जाता है कि भी किस तरह का बीम आए, वो बियरिंग आएगा इसमें? बियरिंग हाँ क्लियर होती है इनिशियली हमारे पास। मतलब मैं हमें बता अपने दूंगा पास्ट आपको, इनिशियली एक्सपीरियंस जो से। होती है ना, अगर आपका जी। नॉर्मल स्पैन है तो उसकी बहुत आसान है बेयरिंग डिफाइन करना, लेकिन जब हाँ हाँ। स्पैन हमारा स्क्यू हो गया या हमारा कर्व में आ गया तब हम्म। बियरिंग में बहुत दिक्कत आती है, तब सॉफ्टवेयर अच्छा। बता देता है। बियरिंग का कॉन्सेप्ट ये है सिंपल, आपकी कोई भी हम्म टेंशन नहीं आनी चाहिए बियरिंग में। अगर आपकी हम्म। टेंशन आई तो वो बियरिंग गलत है, फिर उसे चेंज करो। ओके ओके। अगर टेंशन आ गई ठीक। बियरिंग में हल्की भी, तो क्योंकि हम्म। वो क्या होगा, ब्रिज टॉपल कर जाएगा ओके वर्किंग स्टेज में ही। जैसा ओके। आपने सुना होगा बहुत सारा ब्रिज का सुपर स्ट्रक्चर गिर गया, सिर्फ सुपर हाँ स्ट्रक्चर हाँ गिर गया, बाकी चीजें हाँ खड़ी की सुपर खड़ी रह स्ट्रक्चर। गई। तो उसमें क्या होता हाँ है, हाँ उस पहले वो हाइड्रोलिक जैक पे रखा होता है, बेयरिंग लगाई नहीं होती, तो उसमें क्या होता है कोई हाँ। हाइड्रोलिक जैक फेल हो जाता है, या बेयरिंग में अपलिफ्ट आ जाती है हाइड्रोलिक जैक में प्री स्ट्रेचिंग अभी की जय वजह से। कुमार का इसी केस में तो गिरा स्पेन ना सर? हाँ दिल्ली में गिरा है ना अभी, हाँ दिल्ली में जय भी गिरा कुमार है, का जो जय कुमार का स्पेन गिरा में। है, और हाँ उसमें वो वो मर यही भी गया, वो नीचे एक क्या वो ड्राइवर मर गया, जे ड्राइवर जेसीबी, जेसीबी हाँ ऑपरेटर। बिल्कुल यस सही, सर। वो अभी 1 महीने पहले ही गिरा है। वो सेम कॉज था जो अभी आप बता रहे हो ना, हाँ कि वो भाई। हाइड्रोलिक जैक फेल करे उसके, वो हाँ आई थी यस उसकी सर। रिपोर्ट। तो यही होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट होती है, वो परमानेंट बेयरिंग पे आया नहीं एक हाइड्रोलिक हम्म। जैक फेल करा, वो टॉपल कर गया पूरा ब्रिज। तो ये चीजें होती हैं बहुत हेलो इंपॉर्टेंट, हेलो इसलिए। हेलो। तो मैं अच्छा बेसिक से पीपीटी वो बता दूंगा, और कोई किसी का कुछ क्वेश्चन या डाउट है? सर आपकी क्लास एंड हो गया, हेलो। लेकिन आज का लेक्चर एंड हो गया था, मुझे कहीं जाना था। हाँ हाँ नहीं हो रहा है, हो रहा है। और किसी का कोई डाउट है? नहीं सर, अब डाउट तो रोज जनरेट होंगे, हाँ रोज नहीं रोज मतलब अभी पूछेंगे। इनिशियली मतलब जैसे उन्होंने बताया कि हाँ। पीपीटी के हिसाब से थोड़ा। अब ये सर हम लोग ना, जब आप एक बार सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करोगे तो प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उस पे क्या सॉफ्टवेयर से इंपॉर्टेंट मैं कॉम्प्रोमाइज? बुक दे दूंगा, एक बार बुक से रीड करके ना तो थोड़ा आपके क्वेश्चन खुद से जनरेट हो नहीं जाएंगे, मैं सर ये ये। कह रहा था, जो आप मिडास पे जो आपने आज प्राइमरी इंट्रोडक्शन दिया है ना सर, हाँ हाँ, तो हमें ये मिडास का क्रैक वर्जन कब अवेलेबल हो जाएगा सर? मैं अभी कब से? बोलता हूँ अमन से, वो हमारे पास है, मैंने पहले ही दे रखा था, लेकिन वो हाँ करता हाँ क्या है, अमन ने वीडियो, हमने वीडियो भी बना रखी है कि कैसे इंस्टॉल जी। करना है और कैसे हाँ यूज हाँ। करना है। वो पूरा है, तो लेकिन वो शायद ये अब वेबसाइट का कुछ करने लगा है। उससे पहले हाँ हम हाँ डायरेक्ट ड्राइव का लिंक देते थे, वहां से सब हाँ डाउनलोड हो जाता था और वो हो जाता था। मैं बोल देता हूँ, वो अभी दे देगा तो आप सब कर लोगे, कोई इशू नहीं होगा। हाँ, हम उसे वीडियो इंस्टॉल भी कर है लेंगे पूरी तो। हाँ इंस्टॉलेशन की। हाँ, हम उसे इंस्टॉल करके फिर प्रैक्टिस करेंगे, जो हाँ प्रैक्टिस कर डिफिकल्टी सकते हैं आएंगी। उसमें, हाँ। सारे सॉफ्टवेयर स्टैट भी होगा और अच्छा। डायनामो भी होगा, और अदर जो कोई हम्म और भी सॉफ्टवेयर मुझे पता नहीं, शायद टेक्ला वेक्ला, हम्म। सारे काफी सारे हैं जो भी अवेलेबल हैं क्रैक, वो एक जगह जमा करके रखे हुए हैं, और वहां पे शायद ये मेरे पास है ना 8 GB रैम का लैपटॉप है, इसमें सब नहीं नहीं कोई दिक्कत फ्रिक्वेंटली नहीं होगी, चल। मेरा भी 8 GB हाँ है, कोई दिक्कत नहीं हाँ होगी, ठीक है एनालिसिस सर। में कोई नहीं होती, टेक्ला में हाँ हो सकती है तो हो सकती है, इसमें नहीं होती। हाँ
अच्छा अच्छा, हाँ। नहीं 16 GB है, 16 GB है। नहीं नहीं, मैं कहता रहा हूँ 8 GB में भी कुछ नहीं होगी, एनालिसिस सॉफ्टवेयर इतना नहीं लेते जितना तो वो। इस हार्ड डिस्क पर डिपेंड करता है वो, नहीं नहीं नहीं, हार्ड प्रोसेसर डिस्क पे पर। नहीं, रैम से क्या होता है, हाँ सिर्फ एनालिसिस हाँ। टाइम तुम्हारा वो होता है, वो कभी मैं तो कभार। सर 256 GB का SSD लगा लिया, और फिर हाँ, एसएसडी हार्ड अच्छी रहती है। और हार्ड डिस्क भी लगाया हूँ मैंने, दोनों लगा रखा नहीं है। नहीं नहीं, उस इतना स्पेस नहीं लेगी। स्टैट ज्यादा लेता है, स्टैट के मॉडल ज्यादा लेते हैं, मिडास के कम स्टेट का लेते तो हैं। सर फंस जाती है तो फंस ही जाती है। हाँ, उसके हमने 3 दिन भी मॉडल रन किए हैं, तो वो इशू नहीं है। मिडास का तो 1 दिन तक ही गया है मैक्सिमम रन, वरना स्टैट में 3-3 4-4 दिन मॉडल से रन होता रहता था। हाँ, हाँ। वो स्टैट में थोड़ी दिक्कत है, इस वजह से ही लोग अब इधर ट्रांसफर हो गए। अब इसके बाद एक और सॉफ्टवेयर आ रहा है, वो सोफिस्टिक है जनरली। अच्छा वो यहाँ पे कॉमन है, यूरोपियन रीजन। उसके ज्यादा इंडिया में अभी चालू हुआ है थोड़ा यूज, लेकिन उसके अलावा कहीं यूज ज्यादा है नहीं। यूएस में, मिडिल ईस्ट में नहीं है यूज कहीं भी, या फिर इधर एशियन कंट्रीज में, क्योंकि मिडास तो साउथ कोरियन है, तो इसलिए एशियन कंट्रीज में यूज है। मिडिल ईस्ट में और यूएस भी ने भी एक्सेप्ट कर लिया अब काफी हद तक, इसलिए ये फेमस हो गया है। बाकी वो भी हल्के हल्के हो जाएगा, वो भी अच्छा है, उसमें और कम टाइम लगता है इससे ज्यादा। टाइम की बचत है और कुछ नहीं है, आपको बस जल्दी सबमिट करके एक्यूरेट करके देना होता है। बट टाइम, हर कोई टाइम बचाना चाहता है, क्योंकि उधर हाँ। फाइलिंग रुक रही होती है, कुछ साइट पे कुछ काम करना होता है, सब बस कॉल आती रहती है, जल्दी दे दो जल्दी दे दो, तो बस। ओके, और कोई किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, तो फिर नहीं सर, नेक्स्ट थोड़ा सा बस रिक्वेस्ट है कि मैं पहले अच्छा। थ्योरी हाँ और हाँ, नहीं नहीं बुक, बिल्कुल नहीं, थ्योरी तो बुक तो दे एक दूंगा। बुक मुझे आप व्हाट्सअप कर दो। नहीं नहीं, मैं मैं कर देता हूँ अभी, कर देता हूँ। व्हाट्सएप के मैं ग्रुप में ही डालूंगा, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, तो उसमें सब देख सकेंगे। हाँ, मैं प्रिंट निकलवाना कोई सुने, मैं नहीं चाहे नहीं, उसी कोई से नहीं, पढ़ लूँ। यहाँ पे नहीं है मेरे पास, दूसरे में है, ये सारी एडवांस है मेरे पास बुक, जो इस लैपटॉप में ज्यादा क्योंकि सर आपको बेसिक समझ से में जब नहीं जब आएंगे। तक हम लोग बेसिक नहीं हाँ जानेंगे, हाँ हाँ, बिल्कुल सही तो बात। फिर पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। नहीं बिल्कुल, तुम्हें तो ये भी पता होना चाहिए पहली बात तो, ब्रिज कब कहेंगे, कब मिनिमम स्पैन कितना आएगा ब्रिज का। हाँ, तो मुझे तो ये भी नहीं पता है सर, 2 मीटर कुछ भी नहीं आता है पता है। मिनिमम स्पैन, 2 मीटर याद रखना, कोई पूछ ना ले। और फिर उसके बाद फिर कन्वर्ट कहाँ कितने मीटर तक जाएंगी, फिर शॉर्ट स्पैन ब्रिज, ये मैंने शायद उसमें सब डिस्कस किया था जो हमारी वाली क्लास हुई थी, लॉन्ग स्पैन एंड शॉर्ट स्पैन सब। हाँ, तो तो वो वैसे सब तुम मुझे। वहां वो कोड पढ़ सकते हो, अगर ये सब पढ़ना हो तो IRC 5 है, मैं डाल देता हूँ। लोडिंग के लिए IRC 6 है, और टाइप्स ऑफ ब्रिजेस के लिए IRC 5 है। हाँ, तो वो सब थोड़ा बेसिक मुझे चाहिए सर, हाँ, तभी बेटर मैं रहेगा। डाल देता हूँ टाइप हाँ, ऑफ ब्रिज कौन सा ऑप्ट करना हो। कोड भी है हमारे, लेकिन कोड कोड से ज्यादा तो कोड है मेरे पास सर। आप IRC 5 देखना, IRC 5। हाँ, कोड कोई कोड रिलेटेड कोई सुनो, मेरे पास सारा कोड है। कोई नहीं, उससे। वो तो अच्छी बात है, सब ऑनलाइन अवेलेबल है, तो हर कोई आजकल हाँ, रख लेता है। वो सही भी है, रखना भी चाहिए, कभी भी कुछ भी जरूरत नहीं रहती है। ठीक है सर तो। सर एक क्वेश्चन था, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स हाँ हाँ कंपनीज कैन हायर अस टू इन द डिजाइन टीम? हाँ, ये आप किसकी बात कर रहे हो, हम जो ये अमन की कंपनी है स्ट्रक्चर एक्स, और कोई दूसरी कंपनी? दूसरी कंपनी में भी सर। हाँ, दूसरी कंपनी में आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करेगा, जैसे आप बोलोगे कि मुझे ब्रिज डिजाइन आता है, मुझे मिडास आता है, चैट आता है, और हाँ मुझे ये हाँ सब, तो वो क्या कहेंगे कि भाई वो अपना वो तो लेंगे इंटरव्यू, कि हाँ, इंटरव्यू दो, वो तो और इंटरव्यू दो, और हाँ वो शायद हाँ ये भी हो सकता है कि टेक्निकल राउंड ले लें। टेक्निकल राउंड में क्या हाँ करते हैं, वो फिर पेपर सॉल्व करवाएंगे। अब उसमें हाँ जिसने हाँ बीटेक इसका स्ट्रांग होता है, वो क्या करते हैं, बेंडिंग मूवमेंट हाँ। डायग्राम बनवाते हैं, हाँ और सर, मैंने बेंगलोर में गया था इंटरव्यू देने, तो वो हाँ, तो बेसिक दे दिया है। तो ओके वो सर। हर कंपनी करती है, नहीं उन्हें जरूरी होता है। मैंने बहुत दिए, बहुत बनाए, तो वो ऐसी कोई बात नहीं है आप। नहीं, कुछ कंपनीज पास्ट हैं कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस पे भी काफी हाँ, मैटर कुछ करते कंपनी हैं जो चीजें ना बोलेंगे सर? वो पास्ट के हिसाब से बोलेंगी, कुछ जो होंगी वो डायरेक्ट ले लेती है। हाँ, लेकिन तुम उनसे बोले ना, सर आप डायरेक्ट अच्छा लो, मुझे नहीं। मुझे मॉडलिंग की एक्सपीरियंस है, मुझे ड्राइंग आती है, ये आती है, आप इंटरव्यू ले लो उस हिसाब से। वो हाँ, पूछते हैं कि जी, तुम्हें क्या आता है, फिर उस हिसाब से ट्वेल्व अगर तुम ईयर बोलोगे एक्सपीरियंस है। कुछ नहीं आता, तो वो कहेंगे ठीक है से ले मुझे। हाँ, कह दो आता है, हाँ, ऐसे ही किसी भी ब्रिज का नाम लेके बोल दो, और इंटरव्यू दे लो। अगर इंटरव्यू तुमने मेरा क्या रैमबॉल में रै, हाँ रैमबॉल ने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया था, तो मेरा इंटरव्यू हुआ। हाँ तो मैं हाँ क्या बेसिक एक्सप्लेन नहीं कर पाया, मतलब डिजाइन हाँ, डिजाइन के स्टेप्स कोई, तो फिर वो रिजेक्ट तो हुआ। स्टेप क्या हो, तो ये पूछ लेंगे तुमसे भाई, अगर तुम बोल दो कि भाई पीआर कैप बताओ कैसे डिजाइन करोगे, फाइल कैप बताओ कैसे करोगे, हाँ, फाइल कैप उन्होंने की ऐसे ही डिजाइन। पूछा, पहले पाइल पूछ लिया, फिर पाइल के पूछ लिया, हाँ, बोले वो स्टेप पूछ लेंगे बताओ टाइप्स कैसे ऑफ क्या पाइल है बता दो भाई, प्रोसेस। फ्रिक्शन पाइल कैसे वर्क करती है, और एंड बेरिंग पाइल कैसे काम करेंगी,
उनकी मिनिमम स्पेसिंग बताओ, उनकी वो बताओ कैसे मॉडल करोगे, कैसे डिजाइन करोगे, हाँ कौन से कोड है, कोड भी नहीं पता हाँ होगा बेसिक। मुझे, हाँ क्योंकि मैं नहीं फाइल का कोड कोड वोड तो लिखते पता अलग थे अलग, क्योंकि पढ़ते थे। फाइल का एक्चुअली कोड। कोड IRC तो पता था 2911। सर, वो कोड पता रहता है, लेकिन मेन ये कि ना नहीं नहीं, कि बताओ क्या है फाइल का कोड, बहुत लोगों को नहीं पता होता ना, बताओ फाइल क्या है। कोड तो मुझे भी नहीं पता है हाँ सर। फिर जैसे एक इंटरव्यू में तो डायरेक्ट वो तुमसे 2602 आई थिंक सर। नहीं नहीं 2911 है। अच्छा 2911, हाँ 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 सॉरी टू सॉरी। नाइन पार्ट 11 1 से लेके पार्ट 4 तक है ना हाँ सर। पार्ट 4, लेकिन हम पार्ट 2 यूज करते IS हैं। 2 हम पार्ट 2 डिजाइन में यूज कर रहे हाँ हैं। वो इसके लिए कास्टिंग C2 फाइल के लिए, बाकी तुम्हारा क्या होता है, प्री जी कास्ट सर। की फाइल आती है, हम और एक्चुअली फिर हम लोग तो क्या पार्ट 4 पे ज्यादा फोकस करते हैं, वो हाँ डिजाइन वो तुम्हारा जो कंस्ट्रक्शन के लिए है ना, तो वो पार्ट 4 के लिए होता है, हाँ जी सर। तो पार्ट 2 हमारा ठीक है डिजाइन के सर। लिए होता है। ठीक है, तो वो यही होता बहुत है अच्छा। कि ये सब चीजें इन्वॉल्व होती है हमारी हर चीज में, लेकिन जैसे हम्म, जैसे हम बढ़ते चले जाएंगे जी, तो चीजें सारी आती जाएंगी, कोई इशू होता नहीं। ओके, ओके अगर सर। किसी को कोई पर्सनल डाउट हो वो भी पूछ सकते हैं, जैसे कि कोई अपना कुछ और काम कर रहा हो, किसी को कुछ भेजो तो वो भी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी डिस्कस करी जा सकती है, जी जैसे सर। बिल्डिंग में कोई इशू आ रहा हो या सर कहीं और। वन क्वेश्चन सर, हाँ हाँ, फ्लोटिंग कॉलम यूज करते हैं सर हम लोग इंडिया के अंदर? फ्लोटिंग कॉलम करते हैं, यू डिपेंड करता है कैसी सिचुएशन है। मेट्रो अ, में डिपेंड, मेट्रो में अवॉइड करते हैं, लेकिन नॉर्मल बिल्डिंग में बहुत ज्यादा यूज होता है। तो उसमें से कौन सा इसको यूज होता है? नॉर्मल कोड ही यूज होता है, लेकिन बीम की डिटेलिंग देखनी पड़ती है SP हम्म, 16 और SP 34 के थ्रू। ये अच्छा सर। फ्लोटिंग कॉलम दे रहे हो, वहां पे स्ट्रेसेस ज्यादा जनरेट होती है, जहाँ पे कॉलम की शुरुआत होगी तो वहां पे थोड़ा रीइंफोर्समेंट बढ़ाना पड़ता है। तो फिर से उस बस, केस में डेप्थ ऑफ बीम भी ज्यादा होता होगा, फ्लोटिंग कॉलम वो ज्यादा डिपेंड सपोर्ट। करता है आपकी बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स क्या आ रहा है, वो उससे मतलब नहीं है कि फ्लोटिंग कॉलम कितनी फोर्स लगा रहा है। सिर्फ फ्लोटिंग कॉलम में क्या होगा, आपका बीम फाउंडेशन बन जाएगा, तो हम बीम को फाउंडेशन मान के डिजाइन कर देंगे। ओके सर। अब वो कोई इशू नहीं है, और यूज भी हो रहा है, मेट्रो में भी मैंने किया है यूज, और बिल्डिंग्स में भी होता है, दे सकते हो, लेकिन जनरली अवॉइड करते हैं। हाँ अवॉइड सर। इसलिए करते हैं क्योंकि इंडिया में लोडिंग बढ़ती चली जाती है, तो फ्लोटिंग कॉलम की वजह से कहीं बीम फेल ना हो जाए हमारा। जैसे बिल्डिंग में भाई हमने लाइव लोड 2 किलोमीटर मारा, अगले मे बी कुछ साल बाद वहां पे और बिल्डिंग डाल दी और उसके ऊपर फ्लोर डाल दिए, यही होता है लोकल बिल्डिंग में, तो फ्लोर के फ्लोर डालते चले जाते हैं जी कूदते सर। हुए, तो वो सही नहीं है प्रैक्टिस पे। जो चीज अगर एक बार फिक्स रहेगी, वो आगे आपको पता है फ्यूचर में चेंज नहीं होने वाली, वहां फ्लोटिंग कॉलम दे सकते हैं। जैसे मेट्रो स्टेशन पे है, वो चेंज नहीं होंगे, वो हमेशा सेम रहते हैं, वहां यूज करते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि वहां पे सब कुछ हवा में ही होता है, एक कॉलम के ऊपर सब कुछ टिका होता है, तो वहाँ बहुत कॉमन है फ्लोटिंग कॉलम का कॉन्सेप्ट। और बाकी नॉर्मल बिल्डिंग में भी कॉमन है, अगर आपको कहीं पे जरूरत है कुछ एक्स्ट्रा चीज डालनी है, या जैसे वाटर टैंक को सपोर्ट करना होता है कहीं पे, वहां करते हैं। वाटर टैंक के ही ज्यादातर रहते हैं पंगे, कहीं यहाँ पे वाटर टैंक देना, यहाँ देना, वहां देना है, या कुछ और स्पेशल यूटिलिटीज है, वही आता है। और कोई क्वेश्चन है किसी का? नो सर, नो हाँ सर। बताओ। सर कंप्लीट। नहीं नहीं, मतलब और किसी से कुछ? नो सर। नो, आपका भी नो, और कोई अमन उमन या हमारे और भी हैं, अमन नहीं है, शायद रवि है, रवि है, रवि। अविनाश, हाँ। ओके, तो ओके आज सर। कंप्लीट करने तो हम नेक्स्ट से पूरा मिडास और उसके थ्रू चलेंगे। एक मैं ड्राइंग लेके ही चलूंगा ताकि आपको भी समझ आता रहे हर चीज। नहीं सर, उससे पहले सब बेसिक, हाँ उससे मैं पहले बेसिक theory। भेज दूंगा सर basic, पढ़ाना ठीक पड़ेगा सर थोड़ा है। हाँ बहुत। हाँ बता दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब बेसिक अगर तुम ड्राइंग से सीखोगे तो वो ज्यादा जल्दी समझ में आएगा जब तुम किताब पे सीखोगे, क्योंकि यही होता है जब कंसल्टेंट में डायरेक्ट जाके ड्राइंग मिलती है तो चीजें एकदम समझ में आने लगती है। हाँ ये सर इनको, दो, जैसे पहले आप थ्योरी बता रहे फिर ड्राइंग बताएंगे तो ज्यादा हाँ बेटर वही होगा वही सर। वही उसी के थ्रू जल्दी आ जाएंगी चीजें। मतलब थ्योरी तो मैं बता ही दूंगा, जैसे मैं ड्राइंग और थ्योरी दोनों को एक साथ रख के दोनों को कंपैरिजन में फिर बता तब तो दूंगा। लग रहा है सर हमको समय लग जाएगा, मेरे पास उतना टाइम एक्चुअली, इसीलिए मैं बोल रहा था कि मुझे दो तीन एटलीस्ट कम से कम 2-3 लेक्चर मुझे थ्योरी का चाहिए सर, एक न्यूमेरिकल पार्ट, क्योंकि न्यूमेरिकल से बहुत कुछ आदमी को दिमाग न्यूमेरिकल में तो हम उसके साथ ही करेंगे मैडम के, हम सबसे बेसिक ब्रिज ही लेंगे 8cc गटर का, तो उससे काफी क्लियर हो जाएगा आपका न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल में इशू नहीं आएगा। न्यूमेरिकल ज्यादातर से एक ही कोड फॉलो होता है और चीजें रिपीट होती है न्यूमेरिकल में, आपका एनालिसिस चेंज होता जाता है हमेशा। इसीलिए मैं बोल न्यूमेरिकल, रहा हूँ सर, मुझे एटलीस्ट 1-2 हाँ लेक्चर ऐसा बताइए बेसिक हो जाए, ताकि मैं कोई दिक्कत ना हो
जैसे मैं कोई नहीं, तुम एक काम करना, अमन को बता देना तो हम देख लेंगे एक आधा लेक्चर बेसिक वाले, ठीक है? क्योंकि तो सर मैं बिना तुम्हें बेस एक्स्ट्रा बता आप दूंगा। बताते चलो, मैं क्लास लेते जाऊंगा, प्रैक्टिस हाँ ठीक है, वो मैं सर से ऊपर चला जाएगा, किसने सर से कहना ऊपर ज्यादा। चल, लास्ट में बाउंस करते मैं छोड़ देता हूँ सर। मेरे मेरी दिक्कत ये है ना कि मुझे जो काम पसंद नहीं है, बाउंस हुआ, मैं वो लेक्चर ही करना छोड़ वो देता तो हूँ। सबके साथ ही होता है कि भाई नहीं आ रहा समझ में, क्या ही करूँ लेकिन। वही चीज है सर। नहीं तो एक बार अमन से तुम डिस्कस कर लेना कि ये है, फिर हम दोनों आप अमन और मैं बात करके देख लेंगे, ठीक है? ठीक है सर। आई थिंक रवि हाँ भी सर कुछ प्रिपरेशन करे तो उनका भी बेसिक थियोरेटिकल होगा। ब्रिज का तो बहुत रेयर केस में ही कॉलेज में पढ़ाया जाता है, कहीं भी और भी। हाँ हाँ, नहीं नहीं कोई नहीं, वो एक बार बात कर लेना तो मैं तुम्हें बेसिक एक ही बार में पूरा जो है अपना थ्योरी प्रैक्टिकल बता दूंगा कि कैसे ब्रिज चूज करने, क्या क्या ब्रिज हैं, क्या क्या टाइप्स हैं अवेलेबल, कैसे दिखते हैं और कैसे रहते हैं, तो उससे काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? ठीक है सर। ओके ओके, बाय बाय Guys, good Okay, luck. sir. बाय, गुड नाइट।